So our speakers for today are all the way from Mumbai. They are well renowned for their teamwork, for their excellence in execution and customer service. Dear Solitarians, please join me in welcoming a team that has a legacy of over a century and that they demonstrate best, in a best way our Solitaire core values. Now, please put up your hands together for the Mumbai Dabbawalas. Very good morning, all of you. आपकी आवाज ही नहीं आ रही है. अगर ऐसे रहेगा तो होगा क्या? So good morning to all of you. First of all, thank you so much for inviting me as a guest speaker here. So before we starting the session about the Dabbawalas, I would like to ask one question to all of you. Shall I ask? How many of you know about the Dabbawalas? Oh my God, almost 95%, right? So can anyone explain what exactly we are doing in Mumbai? Dabbawala exactly क्या करते हैं? What they are doing in Mumbai? किसी को पता नहीं? What sir? Providing food to the offices. Okay. Okay, collecting the lunch boxes from their homes and to deliver at their offices. Okay. So guys, actual Dabbawala मतलब क्या? What is exactly Dabbawalas? Because most of the people think that Dabbawala is a catering services. It means we are cooking our own food and we are delivering to our customer. We are selling. But Dabbawala means what exactly? We are collecting the lunch boxes from your home and we deliver your lunch box at your office. So basically that is Dabbawala. It means we provide only delivery services. We are not providing the food. You know about the Pani Puri wala, Lokhand wala. Right? Lokhand wala is selling Lokhand. Pani Puri wala is selling Pani Puri. But Dabbawala is not selling Dabba. We provide only delivery services. So our president said, collection and distribution of lunch boxes. This is our definition. But our Dabbawala said, this is not our definition. Our definition is collection and distribution of lunch boxes with the care of customer. Customer care is very important for us. So जो भी कुछ करना है, 100% dedication देना है, customer satisfaction के लिए ही काम करना है. अगर customer satisfied नहीं हो, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. So customer is a God for us. So you all know about this. Serving people is to serving God, right? जन सेवा हिच करी ईश्वर सेवा. Serving people. People means who exactly? People means our customer. So कुछ भी हो, कितनी भी बारिश आने दो, लेकिन कस्टमर को लंच बॉक्स टाइम पर डिलीवर करना, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आवर जॉब. सो उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, ऐसे डब्बावाला खुद को मानते हैं. सो लेट्स सी हियर मुंबई डब्बावाला. सो व्हाई वी आर यूजिंग मुंबई हियर? बिकॉज वी प्रोवाइड दिस सर्विस ओनली इन मुंबई, नॉट इन अदर सिटीज as well as not in other countries. So because of that we are using Mumbai here. Dabba and wala, there are two words. Dabba means a lunch box and wala means a person who carry this lunch box. So it's come togetherly, Mumbai Dabbawala is here. It's only by helping each other you can achieve a goal. एकमेका सहाय्य करो अवघे धरू सुपंत. एक दूसरे की सहायता करो. It means what? Group activity, team building. अगर कोई भी काम अगर हम टीम से ग्रुप में नहीं करते हैं तो हम हमारी सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे. तो ये जो कहा गया है एकमेका सहाय्य करो अवघे धरू सुपंत, ये गॉड गिफ्टेड है. गॉड ने कहा है. हम सभी डब्बावालास, जितने भी डब्बावालास है, ये सभी के सभी पिलग्रिम्स है. दे आर टोटल डिवोशंस. उनको गॉड अच्छे लगते हैं. गॉड की हर एक कही हुई बात वो फॉलो करने के लिए देखते हैं. तो यही, इफ यू सी हियर, दिस टैगलाइन इज नॉट रिलेटेड टू द सप्लाई चेन as well as not related to the food industry. It's related to the team building activity, only group activity. So they are following it. So how the system was started? Before 130 years back, 130 साल पहले ये सर्विस मुंबई में शुरू हुई थी. Can you imagine 130 साल पहले क्या था मुंबई में? So on that time Mumbai was very small city. Only 7 islands was there. 7 islands. 7 islands में मुंबई डिवाइड की गई थी. So one time what happened? वन पारसी बैंकर्स, पारसी लोगों का मुंबई में ज्यादातर ट्रेडिंग चलता था.
So our founder was work with them as an office work. So one Parsi banker said to our founder, "Sir, can you please deliver my lunchbox to my home, to my office, because I'm getting late. I'm getting late, still my lunch is not ready." Because technology वो टाइम इतनी एडवांस नहीं थी कि लंच जल्दी रेडी हो जाए, तभी चूल्हे पे ही खाना ज़्यादातर बनता था. So our founder said, "Why not? I can deliver it because I am going to killing the hunger of someone, right? Food donation is a big donation. So I am going to killing the hunger of someone. It's a good work, so I can do it." So on that time, he started with the one customer, one lunch box, 100,000 lunch boxes every day. So this is the strength of डब्बावालास. So हमारे डब्बावालास का एक फेमस डायलॉग है, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर नहीं, बट डब्बे वाले जरूर है. बिकॉज हमने डब्बावालास ने जो ब्रिटिश लोग थे उनको भी सर्विस प्रोवाइड की है, हमारे इंडियन लोगों को भी सर्विस प्रोवाइड की है. इसके लिए हम लोग कभी वो टाइम के जेलर नहीं थे, बट डब्बा सर्विस मतलब डब्बा डिलीवर करने वाले डब्बे वाले जरूर थे. So this is the little bit information about our service. We have started in 1890 and we registered this service under Bombay Public Trust Act after independence of India in 1956. Total we have 5,000 employees. We daily deliver 200,000 lunch boxes. It means we are doing 4 lakh transaction every day. How? From your home to your office, that is first transaction for you. After our lunch, we again picked your empty lunch boxes from your offices and we again deliver it back to your home. So home to office, that is the first transaction for you. And again, from your office to your home, that is the second transaction for you. So daily, we are collecting 2 lakh lunch boxes and we are doing 4 lakh transaction every day. And for this first 2 lakh transaction, we take only 4 hours. 4 घंटे तो ज़्यादा ही हो गए. Within 2 hours deliveries हो जाती है, but 4 hours की total हमारी journey होती है. So we take only 4 hours to deliver this first 2 lakh transactions, first 2 lakh lunch boxes. Can you imagine how is it possible? कि ये possible हो सकता है 60 to 70 किलोमीटर की जर्नी, 60 to 70 किलोमीटर का पल्ला गाट के आपको डब्बा डिलीवर करना है. अगर आप इससे रिलेट करते हो अदर कंपनीज से, सो देयर आर मल्टीपल कंपनीज, ऑनलाइन डिलीवरीज कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज आ चुके हैं, फूड डिलीवरी कंपनीज भी है. बट कैन इमेजिन अगर आपको कोई एक पार्सल भेजना होगा, इफ यू वांट टू सेंड वन सिंपल 30 ग्राम एनवलप विद इन 10 to 15 किलोमीटर्स इन मुंबई, क्या पॉसिबल है? ये सेम डे डिलीवरी होने के चांसेस है? सेम डे डिलीवरी करने के लिए कितने सारी कंपनीज आज मुंबई में काम कर रही है, बट स्टिल दे आर अनसक्सेसफुल. दे आर यूजिंग हाई टेक्नोलॉजी, दे आर यूजिंग हाई एजुकेटेड पीपल, दे आर यूजिंग देयर ओन व्हीकल्स, even they are using their plastic papers, each and everything they are using, but still they are unsuccessful. But here in the case of Dabbawalas, we are delivering it within the 4 hours without any technology, without paper, without plastic, without educated people, without private vehicle. Can you imagine how is it possible? Without mobile phone, without technology, how they are connecting to each other, how they are communicated. उनका communication किस तरह से होता है? Within 4 hours 5,000 डब्बावालास कैसे 2 लाख डब्बास डिलीवर कर पाते हैं? So we will see what is the X factor behind that. So total we cover more than 60 to 70 kilometer areas of Mumbai. So you all know about the Mumbai. See why we are working in Mumbai specially. So Mumbai में काम करने का, मुंबई में ही क्यों डब्बावालास आज काम कर रहे हैं? So the city structure is very unique. See total we have 3 residential part in Mumbai. एक जो part है you can see here. First, from Virar to Churchgate, it's around 85 किलोमीटर. मतलब विरार और विरार का वसई विरार का जो इलाका है टोटली रेसिडेंशियल पार्ट है. Then from कल्याण डोंबिवली to CST, it's around 85 किलोमीटर. And finally from न्यू बॉम्बे to CST. So मुंबई का स्ट्रक्चर ऐसे है कि एक जगह पर लोग रहते हैं और दूसरी जगह पर लोग काम करते हैं. So we are collecting the lunch boxes from the residents and we are delivering it into the downtown in the corporate areas. So ये हमारी जर्नी होती है और ये सेम स्ट्रक्चर किसी अलग सिटी में नहीं मिल पाता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज मुंबई लोकल ट्रेन. मुंबई लोकल ट्रेन इज द बैकबोन ऑफ मुंबईकर्स. सो अगर लोकल ट्रेन नहीं होती तो मुंबई में ट्रैवलिंग करना सबसे मुश्किल चीज है. सो डब्बावालास we totally depend on the local trains. So because of that we are providing this service only in Mumbai. So here you can see in the morning we use bicycles to collect the lunch boxes from the households. After that we use local train for the long distance.
and finally we use hand car, hath gadi, for the final delivery, last mile delivery. You can see here there is no any fuel consumption vehicle, right? Train is also running on electricity, so there is no using any paper and plastic. So no paper, no plastic, no fuel consumption vehicle. That means no pollution. Even no technology, no mobile phone, no laptops. It means no radiation. So no radiation, no pollution. Our total business is eco-friendly. So आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि why people they are hiring डब्बा वालास? मतलब लंच भी आप ही का है, लंच बॉक्स भी आपका है और खाने वाले पर्सन भी आप हो, right? Then why people they hire डब्बा वालास? So you can carry your lunch box with you. Am I right? You can carry your lunch box with you in Pune, in other cities. ये possible हो सकता है, but especially in case of Mumbai, it's not possible. Why it's not possible? You can see here. You know ये लोग कौन थे? So ये सभी लोग कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं. इनमें से कोई डायरेक्टर्स है, कोई सीईओज है, कोई तो खुद के मालिक है, मतलब कंपनीज के मालिक है. तो इस तरह से मुंबई की एक जर्नी होती है. मुंबई की लोकल ट्रेन की ब्यूटी आपको पता है? मुंबई की हर एक लोकल ट्रेन में टोटल 12 कंपार्टमेंट्स होते हैं. हर एक कंपार्टमेंट की कैपेसिटी है मोर देन 900 पीपल, सॉरी मोर देन 300 पीपल, और टोटल पूरे ट्रेन की कैपेसिटी है 2000 से लेकर 3000 तक. बट एक्चुअली 10,000 से ज्यादा लोग एट द टाइम बोर्डिंग करते हैं लोकल ट्रेन में. सो आपको पता है किस तरह से बोर्डिंग होती है. सो जब कोई भी लोकल ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर आती है, सो विद इन 10 सेकेंड्स वो निकल भी जाती है. ट्रेन का होल्डिंग पीरियड टाइम है 10 सेकेंड्स ओनली. सो इफ यू वांट टू गेट डाउन, यू हैव टू गेट डाउन विद इन द 5 सेकेंड्स ओनली. सो मुंबई में एक रूल है, इफ यू वांट टू गेट डाउन एट द प्लेटफॉर्म, देन ट्रेन जब शुरू मतलब चालू ही होती है तो उसके पहले ही आपको उतरना होता है. इफ यू आर ट्राइंग टू गेट डाउन आफ्टर द स्टॉपिंग द ट्रेन, इट्स नॉट पॉसिबल. देन दूसरे लोग आएंगे और आपको दूसरे दरवाजे से बाहर फेंक देंगे. मतलब इस तरह से लोगों की जर्नी है. सो इन दिस क्राउडेड लोकल ट्रेन वी कैनॉट कैरी आवर लंच बॉक्स विथ अस. सो बिकॉज ऑफ दैट पीपल हायर डब्बा वालास. एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज वी आर इंडियन. हम ज्यादा से ज्यादा बाहर का खाना नहीं खा पाते, राइट? तो वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन इंडिया में वेस्टर्न कल्चर को लाना मतलब रिगार्डिंग द फूड, ये जल्दी एडॉप्ट नहीं हो सकता. सो हम जो लोग हैं, हमको घर का खाना सबसे अच्छा प्यारा लगता है. सो देयर आर ओनली 2 पीपल दे कैन मेक हेल्दी फूड फॉर यू, योर मदर और योर वाइफ. तो अगर खाना चाहिए तो कहां से चाहिए? घर से. तो घर से मुझे कौन ला के देंगे? डब्बा वालास. सो बिकॉज ऑफ दैट पीपल हायर डब्बा वाला स्पेशली. सो here is the background of Dabbawalas. We all 5,000 Dabbawalas are from Maharashtra, from Pune especially. हम सभी के सभी Dabbawalas पुणे से ही बिलोंग करते हैं. स्पेशली पुणे से मतलब राजगुरुनगर, खेड़, आपको पता ही होगा. देन मावल, मुलशी, जुन्नर, ये जो 7 तहसील्स है, यहाँ से सभी के सभी Dabbawalas बिलोंग्स करते हैं. देन ऑल द Dabbawalas they are from वारकरी सेक्ट. सभी को पता है कि वारकरी मीन्स व्हाट एग्जैक्टली. सो yesterday I was delivering the session at the एमपी में मेरा सेशन था एस्टरडे. तो वहां पर मैंने जैसे उनको कहा कि वारकरी, हमारे सब डब्बा वाला जो वारकरी है, उनको लगा वारकरी मत मीन्स वार करना. तो उनका वहां पर एक गलत मतलब लास्ट तक उनको समझ ही नहीं आया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि वारकरी का मीनिंग उन लोगों में ऐसे होता है. तो लास्ट में मुझे एक सवाल पूछा उन्होंने कि सर ये सब लोग ऐसे क्यों है, वारकरी मतलब ये लोग ऐसे आप क्यों ये करते हो? तो उनको मैंने कहा सर जी, वारकरी मीन्स टोटली डिवोशन. यहाँ पर जो लोग भगवान को ज्यादातर मानते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र, उनको हम वारकरी कहते हैं. जो भगवान की वारी करते हैं, जो भगवान को चाहते हैं, उनको हम लोग वारकरी कहते हैं स्पेशली. सो ऑल द डब्बावालास दे आर फ्रॉम वारकरी सेक्ट. मीन्स वी कैन से 99.99% डब्बावालास दे आर फ्रॉम वारकरी, स्पेशली फ्रॉम पुणे. और 1% डब्बावालास ऐसे 0.01% जो नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं. So you all know about the Chhatrapati Shivaji Maharaj, right?
सो हम सभी के सभी डब्बा वाला छत्रपति शिवाजी के मावले ही है. So on that time in 16th century, he was the greatest warrior. He was killing the terrorists and he rescued the people, right? But today, there is no any terrorists. But still, we are doing same work. We are killing the hunger of people and we are rescuing them. So it's same. So we all know, if you want to run the business, we need one managerial structure to manage the business, right? So you can see here, there is no any finance department, no marketing department, no legal department, no finance, no R&D. डब्बा वालाज में किसी भी टाइप की मैनेजरियल कमेटी में कोई भी टाइप के डिपार्टमेंट्स नहीं है. So we have one managerial structure in our business, but especially we have divided it into the two parts. So here two parts. So why two parts? Because we know there are two parts in business, internal and external. So हमारा जितने भी internally decisions लिए जाते हैं वो एक पार्ट के अंदर होते हैं और external decisions हमारी सेकेंड कमेटी करती है. So you can see here Nutan Mumbai Tiffin Box Supply Charity Trust. This is the external we can say committee. ये totally जो structure है ये हमारा vertical structure है. Then internal structure, this is Mumbai Tiffin Box Suppliers Association. So it's a horizontal structure. So vertical and horizontal, what is the difference between this? Vertical and horizontal का मतलब क्या है exactly? See here, in the vertical structure, a single person they cannot finalize the decisions, right? एक कोई भी authorized person decisions final नहीं कर सकते, but in horizontal structure, anyone they can finalize their decisions anywhere, anytime. So you can see the डब्बा वालाज they comes under the horizontal structure. मतलब डब्बा वालाज जितने भी 5000 डब्बा वालाज है वो horizontal structure के अंडर ही काम करते हैं. So स्पेशली जो vertical structure है उनका काम होता है अगर किसी भी एरियाज में अगर एक्सपेंशन करना हो, मार्केटिंग करना हो, एडवर्टाइजमेंट करना हो तो हमारी जो एक्सटर्नल बॉडी है वो डिसीजंस फाइनल करता है. बट अगर इंटरनल डिसीजंस हो गए रिगार्डिंग फाइनेंस, रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये जो डिसीजंस होते हैं ये टोटली एसोसिएशन के थ्रू फाइनलाइज किए जाते हैं. हमारे एसोसिएशन में टोटल 5 लोगों की कमिटी है. लाइक वी कैन से द प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, 5 डायरेक्टर्स, 500 मुकादम. मुकादम आप में से ज्यादा से लोगों को पता ही होगा. मुकादम मीन्स व्हाट? मुकादम मीन्स स्पेशली वी कैन से सुपरवाइजर. सो 500 सुपरवाइजर एंड 5000 डब्बा वालाज. सो ये जो 5000 डब्बा वालाज है उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. हर एक ग्रुप में 10 लोग काम करते हैं. 10 people are working in one group. So one will be the supervisor. So one supervisor and 9 dabba walas. So 500 groups. It means 500 into 10, 5000 dabba walas are here. So हर एक को एक ग्रुप में allotted किया गया है. So this is the important part of this presentation. How do they do it? So exemplary performance is possible when and only when the external excellence programs such as a Six Sigma go hand in hand with high level of internal excellence. So internal excellence ये आपके लिए new word होगा, right? Internal excellence and external excellence. So basically internal excellence means what exactly? So internal excellence means your internal power. How you think about your customer, how you think about your colleague, how you think about your company even. कि आपकी इंटरनल बॉडी किस तरह से काम करती है, दैट इज इंपॉर्टेंट. अगर आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो आप 100% डेडिकेशन नहीं दे सकते. इफ यू आर नॉट गिविंग 100% डेडिकेशन टू द कंपनी तो सक्सेस नहीं मिल पाता. तो कोई भी काम हमारा सक्सेस नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन. सो एक्सटर्नल एक्सीलेंस मीन्स जो भी चीज हम हमारे बिजनेस में यूज करते हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग जो एक्सटर्नली हम हमारे बिजनेस में यूज करते हैं, दैट इज टोटली एक्सटर्नल पार्ट जिसका हम सिर्फ यूज करते हैं. बट इंटरनल पार्ट इज टोटली योर इंटरनल स्ट्रक्चर, योर थिंकिंग पावर, योर सेटिस्फैक्शन लेवल, योर डेडिकेशन लेवल इज टोटली इंटरनल पार्ट. कि आपकी सोच कैसे काम करती है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक एग्जांपल देना चाहूंगा. नॉर्मली हमारे इंडिया में 8 घंटों की ड्यूटी होती है, राइट? 8 आवर्स इज अ आइडियल टाइम. 8 घंटों से ज्यादा हमारा शिफ्ट नहीं होता. सो जैसे ही सुबह जिस तरह से हमारी ड्यूटी टाइम स्टार्ट होता है, सुबह 9 बजे का मोस्टली टाइम स्टार्ट होगा, 9 से लेकर 5 बजे तक, राइट? सो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक हम हमारे बॉस की हर एक कही हुई बात मानते हैं.
जो भी इंस्ट्रक्शन हमें दिए जाते हैं वो सभी के सभी हम फॉलो करते हैं, जो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है वो हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग कंप्लीट करते हैं। बिकॉज वाई? बिकॉज आई एम वर्किंग देयर। पर जैसे ही 5 बजने के बाद अगर बॉस हमें कहते हैं कि अगर आपको 1 घंटा रुकना है, एक्स्ट्रा काम करना है, सो हाउ यू थिंक अबाउट द कंपनी, हाउ यू थिंक अबाउट द बॉक्स? हम अगेंस्ट हो जाते टोटली कि अरे क्यों बॉस ने रुकाया मुझे तो काम करना है, घर पे जाना है। ऐसी कोई कंपनी होती है क्या? ऐसा कोई काम सडनली देते हैं क्या? ऐसा होगा तो मैं कंपनी छोड़ के चला जाऊंगा, राइट? इस तरह से हम सोचते हैं। Am I right or wrong? हमारी ऐसी सोच होती है जो हमारे कंपनीज के टोटली अगेंस्ट करती है अगर हम हमारे 5 मिनट एक्स्ट्रा कंपनी ने लिए तो। सो ये हमारा डेडिकेशन नहीं है। अगर हमारी सोच इस तरह से काम करती है, इसका मतलब यही होता है कि हम वहां कंपनी में सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए ही काम करते हैं। हमारे ड्यूटी टाइम है, हम लोग ड्यूटी टाइम होने के बाद निकल जाते हैं, राइट? सो दिस इज नॉट योर 100% डेडिकेशन। इफ यू आर गिविंग योर 100% डेडिकेशन, देन अगर 24 घंटे भी लग जाते हैं, मुझे आज का काम मुझे आज ही फाइनल करना है, तो आप 24 घंटे भी काम करते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो हियर डॉक्टर प्रदीप देशपांडे, ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ सिक्स सिग्मा एडवांस कंट्रोल फ्रॉम यूएसए। ये यूएस के हैं, स्पेशली मतलब वो पुणे से ही बिलोंग करते हैं। तो यूएस में ये सिक्स सिग्मा के क्रो क्रिएटर जो माइकल हैरी है, उनके फ्रेंड है। तो उन्होंने सोचा कि सिक्स सिग्मा ये जो क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट है, ये हम एक्सटर्नल एक्सेलेंस को देते हैं, बट इंटरनल एक्सेलेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब ये जो डेडिकेशन पावर है, ये कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? सो हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये आदमी 100% सक्सेसफुल, मतलब 100% डेडिकेशन देने वाला बंदा है या नहीं? सो उन्होंने एक मशीन डेवलप की। मशीन डेवलप करने के बाद उन्होंने स्टडी की, केस स्टडीज की। तो सबसे पहले उनका केस स्टडी करने का जरिया था डब्बावालास, कि डब्बावालास 100% सक्सेसफुल माने जाते हैं, तो डब्बावालास का डेडिकेशन आता कहां से? वी वांट टू फाइंड इट। तो उन्होंने डब्बावालास के ऊपर केस स्टडी की, मतलब वो मशीन के थ्रू डब्बावालास की फोटोनिक एनर्जी उन्होंने कैलकुलेट की, और कैलकुलेट करने के बाद ही कम अप विद द रिजल्ट। यू कैन सी द रिजल्ट हियर। Here you can see the 93%, 96, 92, 95, 96, 94, 88%. It means more than 90%. मतलब डब्बावालास का जो इंटरनल एक्सेलेंस का लेवल है, it's more than 90%. You can see the chakra alignment. Total we have 6 energy source in our body. ये जो चक्र अलाइनमेंट है, ये हमें बैलेंस करना होता है। ये बैलेंस कब होता है? जब आपका दिमाग, आपकी सोच अगर शांत हो, अगर आप फ्रस्ट्रेशन में हो, तो ये बैलेंस नहीं होता। आपको टोटली शांत होता है, आपको टोटली शांत होना है, मतलब फुल्ली सेटिस्फाइड होना है, तभी ये चक्र और एलिमेंट अलाइन होता है। तो ये जो है, ये डब्बावालास में 90% क्यों माना जाता है? मतलब 90% से ज्यादा क्यों है? डब्बावालास खुद को सेटिस्फाइड कैसे मानते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, राइट? तो डब्बावालास का ऐसे कोई स्पेशली कोर्स नहीं है कि आपकी डेडिकेशन पावर बढ़ाई जा सकते। तो ये डेडिकेशन बेसिकली इंटरनल एक्सेलेंस को मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूंगा। इट्स अ गॉड के रिलेटिव ये एग्जांपल है। तो मुझे आपसे एक सवाल है, अगर आप में से कितने ज्यादा लोग भगवान को मानते हैं स्पेशली? ऑलमोस्ट 100%, राइट? सो हियर इज अ क्वेश्चन। अगर आप किसी मंदिर में जाते हो, मंदिर के बाहर एक फल और फूल बेचने वाला एक बंदा वहां पर रहता है, राइट? हर एक मंदिर के बाद वहां वो रहते ही है। तो हम सोचते हैं कि भगवान के लिए कुछ ना कुछ तो फल या फिर फूल हम लोग वहां से लेके भगवान को चढ़ाएंगे, राइट? तो आप उस फल और फूल विक्रेता के पास जाते हो, कुछ वहां से खरीदते हो, और खरीदते समय वो बंदा आपको कुछ सड़े हुए फूल और सड़े हुए फल दे देता है। तो आपका उसके लिए आंसर क्या होगा? मतलब आप हाउ यू थिंक अबाउट इट? आप क्या बोलेंगे उस बंदे को? एक तो बोलोगे कि मुझे सड़ा हुआ नहीं चाहिए, मुझे अच्छा ही चाहिए, बिकॉज भगवान को चढ़ाने, राइट? तो वो बंदा कहता है सर भगवान को तो ही चढ़ाने हैं, किसी को खाने तो नहीं है, वो तो बाद में तो फेंक ही देंगे। बट आपका आंसर क्या होता है? नहीं, मुझे ये भगवान को चढ़ाने हैं। अगर भगवान को मैं गलत कुछ तो देता हूं, अगर सड़े हुए देता हूं, तो भगवान मेरे पे नाराज हो जाएंगे, राइट? तो भगवान के बारे में अगर कुछ भी होता है तो हम लोग 100% एक्यूरेट और 100% श्योर रहते हैं, बरोबर? जिस तरह से कुंभ मेला यूपी में ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये जो कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया गया था, ये टोटली आईएएस ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे। तो इतने सारे लाखों लोगों को मैनेज करना, वहां पर टेंट हाउस, इतना अच्छा मैनेजमेंट हुआ कि 3 गिनीज बुक में, मतलब 3 रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज किए गए गिनीज बुक में। सो ये डेडिकेशन वहां को उनको कहां से आया?
कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज किस तरह से काम करते हैं हमें सभी को पता है। अगर एक काम करना होगा तो 10 दिन लगा देते हैं, मतलब उनका जो स्लो मोशन है वो सिर्फ उनके ऑफिस में था। बट ये कुंभ मेला के टाइम इतने 100% डेडिकेशन उन लोग में आया कहां से? तो उनके जो मेन ऑफिसर्स थे उनको एक सवाल केस स्टडी करते समय पूछा गया था कि ये आपने 100% डेडिकेशन कहां से लाया? तो उन्होंने एक ही आंसर किया कि यहाँ पर जो लोग आने वाले हैं, जो साधु संत लोग यहाँ पर जो आने वाले हैं, वो लोग सभी के सभी भगवान को चाहने वाले हैं। अगर उनके लिए हमने अच्छी सर्विस नहीं दी तो इन फ्यूचर हमारे लिए कुछ, मतलब भगवान हमारे लिए कुछ भी काम, मतलब भगवान हमारे ऊपर नाराज हो सकते बेसिकली। तो ये होता है, जहां पर भगवान का डर आता है तो हम लोग 100% डेडिकेशन दे देते हैं, राइट? तो सेम केस यहाँ पर डब्बावालाज में एप्लीकेंट है। जिस तरह से डब्बावालाज अपने कस्टमर को गॉड मानते हैं, जिस तरह से डब्बावालाज का कहना है कि कस्टमर इज अ गॉड फॉर अस, तो इसी तरह से 100% डेडिकेशन यहां से उनको मिलता है। उनकी जो भक्ति पावर है, ये जो भक्ति पावर यही उनको डेडिकेशन लाने में हेल्प करती है। सो डॉक्टर प्रदीप देशपांडे का उनका कहना है कि अगर हायर परफॉर्मेंस, एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस को आपको बीट करना है, सो यू शुड हैव हाई इंटरनल एक्सीलेंस प्लस हाई एक्सटर्नल एक्सीलेंस। मतलब आप जो चीज आपके बिजनेस में यूज करते हो एक्सटर्नली, सो वो भी हाई होनी चाहिए, उसकी एक्यूरेसी लेवल भी हाई होनी चाहिए। नहीं तो हम लोग 1940 का मॉडल अगर ट्रांसपोर्ट में यूज करेंगे अब भी, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट? हमें एडवांस ही होना है, टेक्नोलॉजी में भी एडवांस चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी एडवांस ही चाहिए, जो भी हम यूज करते हैं वो भी एडवांस ही होना चाहिए। 100% एक्यूरेसी उसमें भी चाहिए, प्लस 100% एक्यूरेसी, 100% डेडिकेशन हमारा भी चाहिए, तभी हम एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस को बीट कर पाएंगे। सो जो डब्बावालाज की इंटरनल एक्सीलेंस लेवल है दैट इज मोर देन 90%, और जो एक्सटर्नल पार्ट है दैट इज आवर सप्लाई चेन एंड कोडिंग सिस्टम, इज the accuracy level of our supply chain that is 99.99997% according to the Six Sigma. So ये जो दोनों thing है, जो both the thing is more than 90%. So because of that, Dabbawalas they are beating the exemplary performance. So here you can see how we can improve our internal excellence level. आप और मैं ये कैसे कर सकते हैं? Because we are rational minded people, right? So भक्ति हम नहीं कर सकते. There is no any course to improve your bhakti power. Bhakti comes from the childhood, right? So bhakti for rational minded people, this is not an option. So how we can improve our internal excellence level? So yoga and meditation basically, ये दो चीज ऐसी है जो हमारी इंटरनल पावर को, हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ा सकती है. So सेम केस स्टडी जब नॉर्मली कॉर्पोरेट में जो काम करते हैं एम्प्लॉयज, उनके ऊपर की गई थी, तो उनमें जो डेडिकेशन लेवल है, इंटरनल एक्सेलेंस लेवल है, वो बिलो 85% मानी गई थी. मतलब 75% से लेके 85 के बीच में ही उनके नंबर्स आ रहे थे. और जो ज्यादा लोग फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स, जिनको ज्यादातर कैंसर होता है, वो ज्यादातर लोग टेंशन फ्रस्ट्रेशन में ही होते हैं, राइट? तो उनकी जो इंटरनल एक्सेलेंस लेवल थी वो बिलो 60% थी. मतलब जितना फ्रस्ट्रेशन, जितना टेंशन, उतना लेवल आपका कम, जितना फ्रस्ट्रेशन, जितना टेंशन, उतना डेडिकेशन ही कम, राइट? सो उनका कहना है अगर ये इंटरनल एक्सीलेंस लेवल अगर बिलो 45 हो जाती है तो आदमी की कभी भी डेथ हो सकती है. सो हाई लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन वी कैन से, अगर फ्रस्ट्रेशन की अगर एक सीमा है वो अगर टूट जाती है तो कभी भी डेथ हो सकती है, अगर ये 45% से नीचे आ जाता है तो. सो बिकॉज ऑफ दैट वी शुड हैव हाई इंटरनल एक्सीलेंस लेवल. सी बिलीव्स ऑफ डब्बावालाज, हाउ वी गेट मोटिवेटेड. सो मोस्टली डब्बावालाज का ये कुछ वर्ड्स है जो भगवान ने कहे हुए हैं, उनको ही डब्बावालाज स्पेशली फॉलो करते हैं. वर्क इज अ वर्कशिप. वर्क इज अ वर्कशिप मीन्स व्हाट? हाउ वी हैव टू फोकस, किस तरह से हमें फोकस करना है हमारे दिए हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर. सो दैट वी लर्न फ्रॉम दिस वर्ड. सर्विंग पीपल इज टू सर्विंग गॉड, दिस इज आवर बेसिकली ऑब्जेक्टिव. यू कैन सी हियर, अन्नदान इज अ महादान, फूड डोनेशन इज अ बिग डोनेशन, एंड आनंद इज महानंद. आनंद इज महानंद. यहां पर एक एग्जांपल, मतलब एक डब्बावालाज को क्वेश्चन किया था कि आप सेटिस्फाइड कैसे, मतलब खुद को सेटिस्फाइड कैसे रखते हो? तो उन्होंने, डब्बावालाज ने उनको आंसर क्वेश्चन किया था कि आपके पास मोबाइल है? तो उन्होंने कहा है, ये देखिए मेरे पास भी मोबाइल है. मतलब जो नोकिया 170 को कुछ तो एक मॉडल है नॉर्मली, जिस मोबाइल से सिर्फ बातें ही की जा सकती है. तो उनके पास 1 लाख का मोबाइल था, डब्बावालाज के पास 1600 का मोबाइल था. तो उन्होंने कहा दोनों का काम क्या है? सिर्फ बात ही करना, राइट? सो मैं इसमें सेटिस्फाइड हूं, आप उसमें सेटिस्फाइड हो. आप अगर लाखों के गाड़ी में सवारी करते हो तो मैं करोड़ों की गाड़ी में सवारी करता हूं. ये जो लोकल ट्रेन है ना, ये कई करोड़ों में मिलती है, तो इसी में मेरा सेटिस्फैक्शन है. मतलब हर एक छोटी चीज में
जो भी कुछ आपके पास है उसमें सेटिस्फाइड आपको होना चाहिए. दैट वी कैन लर्न फ्रॉम हियर. एंड सेकेंड थिंग, time is money and unity is a power. So how Dabbawalas are they famous in all over the world because of these two things? Time is money. Time is money means what? अगर आप पैसे के पीछे भागते हो, तो पैसा आपको कभी नसीब नहीं होगा. अगर आप टाइम को ही पैसे की तरह देखते हो तो पैसा अपने आप आपके पीछे चलता आ जाएगा. राइट? टाइम इज मनी, मतलब आप मनी, पैसे कमाने के लिए जो भी तरीका यूज करते हो, जो डेडिकेशन लाते हो, जितना दिमाग लगाते हो, अगर आपके पास पैसे नहीं हो, पैसे कमाने के लिए आप क्या करोगे? चोरी करना होगा तो भी आप करोगे, लेकिन पैसे कमाने के लिए कुछ भी करोगे. राइट? पैसा कमाना है, पता नहीं कैसे कमाना है, कुछ भी करेंगे. अगर चोरी भी करना पड़े तो चोरी भी करेंगे, बट पैसे कमाना है. राइट? ये होती है पैसे कमाने के रिगार्डिंग थिंकिंग. बट टाइम यूटिलाइजेशन की रिगार्डिंग हम कुछ भी नहीं सोचते. टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करना है, हर एक सेकंड कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये आज तक हमें नहीं पता. किस तरह से टाइम को यूटिलाइज करना है हम अभी तक उसके बारे में नहीं सोचते हैं. बिकॉज ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल कभी निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. अगर आप में से ज्यादातर लोगों ने मुंबई में ट्रैवलिंग भी किया होगा, और मुंबई में ज्यादातर आप में से लोगों ने 1-2 महीना आपने स्टे भी किया होगा. राइट? सो मुंबई में आपको पता है कि किस तरह से लाइफ दौड़ती है. विद इन सेकेंड्स हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग गायब भी हो जाते हैं. सो ये जो सेकंड का टाइम मैनेजमेंट है ना, ये आपको सबसे पहले आना चाहिए. अगर आप टाइम यूटिलाइजेशन के लिए आपका 100% पावर लगा देते हो, डेडिकेशन लगा देते हो, तो पैसे अपने आप आपके पीछे चलते आ जाएंगे. सो यही डब्बावालास का कहना है कि टाइम को ठीक तरह से देखना है. यूनिट इज अ पावर मींस ग्रुप एक्टिविटी बेसिकली. सी, ये जो पार्ट था ये टोटली इंटरनल पार्ट था कि किस तरह से डब्बावालास की सिस्टम चलती है, कितने डब्बावालास कितने डब्बास को डिलीवर करते हैं. बट हाउ 5000 डब्बावालास दे डिलीवर 2 लाख लंच बॉक्सेस, एक्चुअली ऑपरेशन किस तरह से होता है वी विल सी हियर. कि जिस तरह से हम किसी भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी या फिर ऑनलाइन जितने भी कुरियर कंपनीज है, अगर हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं वहां से, सो वी विल सी देयर विल बी सम बारकोड कोड और क्यूआर कोड ऑन द पार्सल. सो आफ्टर द स्कैनिंग इट, आफ्टर दैट वी विल नो वेयर इज टू बी डिलीवर्ड. तो ये कहां डिलीवर करना है, आफ्टर द स्कैनिंग इट वी कैन फाइंड इट. सी हियर कोडिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो. सो डब्बावालास की कोडिंग सिस्टम भी इसी तरह से काम करती है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो मींस सप्लाई चेन. कोडिंग सिस्टम बेसिकली हियर, ये है डब्बावालास की कोडिंग सिस्टम. सो यहां पर कोई क्यूआर कोड नहीं है, ना कोई बारकोड, तो स्कैनिंग मशीन का तो कोई सवाल आता ही नहीं. सो यहां पर कुछ नंबर्स है, अल्फाबेट्स है, कलर कॉम्बिनेशंस है. ये डब्बावालास का क्यूआर कोड है. डब्बावालास का कहना है कि हमारे आईज ही हमारे स्कैनर्स है, हमारा दिमाग ही हमारा कंप्यूटर का सीपीयू है, और ये जो व्हाइट कैप है ये हमारे कंप्यूटर का कवर है. बेसिकली ये टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं हमारे सर्विस में. ये जो व्हाइट कैप है ये डब्बावालास का बेसिकली जीपीएस है. अभी आप सोचोगे कि ये जीपीएस कैसे हो सकता है. सो ये जीपीएस स्पेशली डब्बावालास ने इस तरह से बनाया हुआ है, अगर आप लोकल ट्रेन में जब ट्रैवल करते हो तो हजारों लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं. राइट? सो किसी के भी मतलब सर पर आपको टोपी नहीं दिखेगी, बट डब्बावालास को जिस तरह से डब्बावालास की प्राइसिंग पॉलिसी, टाइम पॉलिसी डिजाइन की गई है कि 3 मिनट्स का लिमिटेशन सभी को दिया गया है, उनके कस्टमर्स को भी और डब्बावालास को भी 3 मिनट का लिमिटेशन से. अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया रहेगा कि मुझे आपके घर में से सुबह 9 बजे डब्बा पिक किया जाएगा, मतलब स्पेशली कस्टमर के घर से, अगर आप हमारे कस्टमर हो, आपको एक टाइम दिया जाएगा कि सुबह 9 बजे आपके घर पर डब्बावाला आएंगे और वहां से डब्बा पिक कर आगे पिकअप के लिए निकल जाएंगे. तो 9 बजे आपको अपना लंच बॉक्स रेडी रखना ही होता है. 9 बजे अगर रेडी नहीं होगा तो 9:03 तक डब्बावालास आपकी वहां पर राह देखेंगे. ही विल वेट. वहां पर 9:03 तक ही वो वेट करेंगे, और जैसे ही 9:03 हो जाते हैं वहां से वो निकल जाएंगे विदाउट योर पिकअप, अगर आपने डब्बा हैंडओवर नहीं किया तो. ठीक है, पहले दिन गलती मान सकते हैं, सेकेंड दिन अगर सेम अगर लेटेंसी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डब्बावाला दे कैन मैनेज. बट अगर तीसरे दिन अगर सेम आप डब्बा टाइम पर हैंडओवर करने में अगर देरी करते हो तो आपकी सर्विस स्टॉप की जाती है और आपको राम राम किया जाता है वहां पर ही कि हम आपको सर्विस नहीं दे पाएंगे. अगर आपको टाइम का वैल्यू नहीं है, अगर आप टाइम पर हमें डब्बा हैंडओवर नहीं कर देते हो तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता. ये जब कस्टमर जब जुड़ते हैं डब्बावाला से तो ये सब जो बातें होती है ये सब एडवांस में ही क्लियर की जाती है. तो सेम जिस तरह से कस्टमर के लिए टाइम पॉलिसी है, सेम एज ए डब्बावालास के लिए भी टाइम पॉलिसी है.
जिस तरह से डब्बा एक दूसरे के हाथों से डब्बा डिलीवर किया जाता है, मतलब एक डब्बा अगर डिलीवर करना होगा तो मल्टीपल डब्बा वालों की जरूरत होती है। तो जिस तरह से डब्बा एक दूसरे को हैंडओवर किए जाते हैं, तो उसी तरह से हैंडओवर करने का जो टाइम होता है वो 3 मिनट का ही होता है। अगर 10 बजे आपको 10 टिफिन एक दूसरे डब्बा वालों का हैंडओवर करना है, तो 10:03 से पहले ही आपको वो डब्बा हैंडओवर करने होते हैं। तो अगर हम वो हैंडओवर नहीं कर पाते हैं तो वो डब्बा वाला वहां से निकल जाते हैं। अगर वो डब्बा वाला निकल जाएंगे तो ये डब्बा आपके 10 डब्बा डिलीवर नहीं हो पाएंगे। तो सोचिए 130 सालों में अभी तक आपने कभी सुना है कि डब्बा वाला ने ऐसी कभी गलती की है कि डब्बा वाला का मिसमैच हुआ है और डब्बा वाला ने एक डब्बा दूसरे ही जगह पर जाके डिलीवर किया है? आज तक 130 सालों में ये कभी हुआ नहीं। मतलब आप सोच सकते हो कि टाइम के रिगार्डिंग डब्बा वाला कितने पंक्चुअल है। डे प्लानिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो ये जो कैप उसमें कैसे इंपॉर्टेंट रोल है, जिस तरह से 3 मिनट के अंदर हमें डब्बा हैंडओवर करना होता है। सो डब्बा वाला जब प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग रहते हैं। सो हमें कैसे पता चलेगा कि डब्बा वाला एग्जैक्टली कहां पर स्टैंड है, मतलब कहां पर खड़े हुए हैं? सो अगर वो कॉर्नर पर ये कैप पहने हुए कोई बंदा है तो हमें तुरंत ही पता चलता है इस कॉर्नर से कि वहां पर डब्बा वाला से मुझे डायरेक्टली वहां पर कनेक्ट होना है। तो ये बेसिकली प्लेटफॉर्म पर और मुंबई के सड़कों के ऊपर ये काम आता है। तो ये अगर कैप कोई भी डब्बा वाला नहीं पहनते हैं देन उनको 1000 रुपीज एज अ फाइन देनी पड़ती है। 1000 रुपीज ये कैप अगर आप नहीं पहनते हो तो आपको फाइन लग जाती है। तो कॉस्ट ऑफ द कैप इज वेरी नॉमिनल है, 20 रुपीज। 20 रुपीज की कैप आती है, बट अगर आप नहीं पहनते हो तो आपको 1000 रुपीज फाइन देनी पड़ती है। बिकॉज ये कैप के वजह से है आपके कितने सारे कस्टमर्स के डब्बा डिलीवर नहीं हो सकते। सो ये रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो सी here we have only 4 code E3, VLP and 9XL12. So with the 4 code we cannot make 2 lakh codes, right? 2 लाख कोड नहीं बना सकते। 2 डाइज अगर फेंकते हैं तो 36 प्रोबेबिलिटीज आती है। सो 4 कोड के साथ 2 लाख डिफरेंट कोड हम लोग नहीं जनरेट कर सकते। बिकॉज ऑफ दैट वी आर यूजिंग कलर कॉम्बिनेशंस, नंबर्स, अल्फाबेट्स, other languages also we are using, Roman numbers also we are using, then signs also we are using, plus, minus, hashtag, सरस्वती का साइन। मतलब मल्टीपल नंबर्स, मल्टीपल लैंग्वेज, मल्टीपल साइंस का यूज करके कोड सिस्टम को बनाया गया है। सो क्या ये कोड में ऐसे क्या है कि डब्बा वाला विद इन सेकेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डब्बा कहां से आया है, किसने पिकअप किया है, किस जगह से पिकअप किया है, किस ग्रुप ने पिकअप किया है, किस जगह जाके इसे डिलीवर किया जाएगा, और जहां लास्ट मेल डिलीवरी के टाइम अगेन विच डब्बा वाला विल पिक दिस लंच बॉक्स, एंड फाइनली ये डब्बा किस बिल्डिंग में जाएगा और ये बिल्डिंग के किस फ्लोर पर जाएगा। सो इतनी सारी इंफॉर्मेशन ये कोड में ऐड की गई है। कैन इमेजिन अगर ये सारी इंफॉर्मेशन हम एक A4 साइज पर ऐड करते हैं, सो टोटली एक A4 साइज पेपर आपको लग सकता है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन डब्बा वाला ने कंप्रेस करके विद इन 4 कोड इसे ऐड की गई है। कैन एनीवन वांट टू ट्राई टू स्कैन इट कि ये क्या है? बेसिकली कोई आइडेंटिफाई कर सकता है? सो आपने मुंबई में ट्रैवल किया, मतलब यू नो अबाउट द ULP। VLP स्टैंड फॉर विले पार्ले, राइट? बट अदर कोड का क्या मीनिंग है? कैन एनीवन वांट टू एलाबोरेट इट? जस्ट ट्राई। क्या है एग्जैक्टली डब्बा की कोडिंग सिस्टम? सो डब्बा आर टोटली सेमी लिटरेट। जस्ट ट्राई लाइक समथिंग कि 9 बजे पिकअप, 12 बजे डिलीवरी, ऐसे कुछ, या फिर ग्रीन इज अ पिकअप पॉइंट, रेड इज अ ड्रॉप पॉइंट। तो फिर क्या है एग्जैक्टली? यस, maybe third lane and 9:15 kind of. okay, Ville Parle East, third lane. Okay, pick up at 9:10, drop at 12. Okay, from this side कुछ तो यूनिक होगा डब्बा के कोडिंग में जो हम भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नो वन? ओके, सो ये जो कोडिंग सिस्टम है, वेरी सिंपल कोड। सी यहां पर इस कोड में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, लाइक मॉर्निंग में लंच बॉक्स किस जगह से पिक किया जाएगा, द नेम ऑफ द स्टेशन इज हियर। अगेन विच डब्बा वाला विल पिक दिस लंच बॉक्स इन द मॉर्निंग, द नेम ऑफ द डब्बा वाला इज हियर। आफ्टर दैट ये लंच बॉक्स किस जगह पर जाके डिलीवर किया जाएगा, द डेस्टिनेशन कोड इज ऑल्सो हियर। फाइनली ये लंच बॉक्स डेस्टिनेशन स्टेशन पर आने के बाद अगेन विच डब्बा वाला विल पिक दिस लंच बॉक्स, द नेम ऑफ द डब्बा इज अगेन हियर, द सेकंड डब्बा वाला नेम। एंड फाइनली ये लंच बॉक्स किस बिल्डिंग में जाएगा, द नेम ऑफ द बिल्डिंग इज हियर, एंड किस फ्लोर पर जाके इसे डिलीवर किया जाएगा, द फ्लोर कोड इज आल्सो हियर। सो ये किस तरह से काम कर रहा है बेसिकली? सी
VLP स्टैंड फॉर विले पार्ले, सो ये लंच बॉक्स विले पार्ले से पिक किया जाएगा. सो वाई विले पार्ले से ही क्यों पिक किया जाएगा? बिकॉज इट्स रोट ऑन द टॉप. सो टॉप एड्रेस ऑलवेज बी अ पिकअप पॉइंट फॉर अस. सो ये लंच बॉक्स विले पार्ले से ही पिक किया जाएगा. सो हु विल पिक दिस लंच बॉक्स? मिस्टर ई. ई मतलब ईश्वर भी हो सकता है उस डब्बा का नाम. सो मिस्टर ई विल पिक दिस लंच बॉक्स फ्रॉम विले पार्ले स्टेशन, and after that he will send this lunch box towards the Churchgate station. So why Churchgate? You can see in the center. So center code always be a destination code for us. So 3. So basically we allotted numbers for the stations. So we have more than hundreds of stations in Mumbai. So हर एक स्टेशन के लिए एक सेपरेट कोड दिया गया है. So 3 numbers means Churchgate. So this lunch box will travel from Vile Parle to Churchgate by local train. So after reaching at Churchgate station, again Mr. 9 will pick this lunch box from Churchgate station and he will deliver this lunch box in Express Tower. EX is a building code. Express Tower के 12वें फ्लोर पर इसे डिलीवर किया जाएगा. Basically. So it's very simple, right? No? It's very simple. You can see here. Here is an example. See, VP also stand for the Vile Parle. ये लंच बॉक्स विले पार्ले से पिक होके एयर इंडिया टावर के 12 फ्लोर पर इसे डिलीवर किया जाएगा चर्चगेट में. देन घाट के ऊपर से ये लंच बॉक्स ट्रैवल करेगा दादर में आके, दादर में शॉर्टिंग होने के बाद ये लंच बॉक्स मिस्टर 2 जो सेकंड डब्बा वाला है ये डिलीवर करेंगे पेनिनसुला टावर के 9th फ्लोर पर. ये लंच बॉक्स बोरोली से आके बैंड्रा में डिलीवर होगा ML टावर के 10th फ्लोर पर, और ये मालाड से आके चर्चगेट में डिलीवर होगा. सो कुछ डिफरेंस आपको दिखा यहां पर. कलर कोड ओके. नंबर्स का भी कुछ डिफरेंट आपको दिखा होगा, राइट? नंबर्स 3 मीन्स चर्चगेट, बट बोरोली होगा तो 3 मीन्स चर्चगेट नहीं होता, 3 मीन्स बैंड्रा हो जाता है. सी एल VP stand for Vile Parle and VLP also stand for Vile Parle. Then why 2 code for one station? Why 2 code for one station? You know Mumbai is divided into 2 parts, East and West Mumbai. So VLP stand for Vile Parle West and VP stand for Vile Parle East. So total 4 groups are working on Vile Parle station. 4 ग्रुप विले पार्ले स्टेशन पर काम करते हैं, 2 ग्रुप वेस्ट में और 2 ग्रुप ईस्ट में. ओके, सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई योर ग्रुप? ये लंच बॉक्स किस ग्रुप का होगा? ये ईश्वर नाम का बंदा किस ग्रुप से बिलोंग करता होगा, राइट? सो सी हियर येलो एंड रेड कलर. सो दिस इज अ साइन ऑफ सेकंड ग्रुप. मतलब ये विले पार्ले ईस्ट के सेकंड ग्रुप का साइन है. अगर वीपी विथ ग्रीन एंड रेड, अगर यहां पर ग्रीन एंड रेड, यू कैन सी हियर यहां पर ग्रीन एंड रेड कलर, राइट? सो वीपी विथ ग्रीन एंड रेड, दैट इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ विले पार्ले ईस्ट. VP with yellow and red, that is the second group of Vile Parle East. Same as that on west side. VLP with green and red, that is the first group of Vile Parle West, and VLP with yellow and red, that is the second group. So basically जो color code है, color combinations है, ये group identification के लिए use किए जाते हैं. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दादर, दहिसर, डोंबिवली एंड देवनार, राइट? दादर, दहिसर, डोंबिवली एंड देवनार सभी के सभी डी से स्टार्ट होते हैं. तो किस तरह से इसकी कोडिंग होगी? सो अगर डी टॉप में ऐड करते हैं वीपी की जगह, अगर वहां पर डी होगा, सो इट मींस ये लंच बॉक्स दहिसर से पिक किया जाएगा. अगर डी, इफ आई राइट डी ऑन द टॉप, देन इट वुड बी पिकअप फ्रॉम दहिसर. इफ आई राइट डी ऑन द डाउन साइड, जो नीचे जगह है डाउन साइड में, अगर इफ आई राइट डी ऑन द डाउन साइड, इट मींस this lunch box will pick from Dadar station. If I write D 2 times on the top and bottom, दोनों साइड अगर D में अगर ऐड करता हूं तो ये लंच बॉक्स पिक किया जाएगा डोंबिवली स्टेशन से. If I write D in the down side, D एक ही टाइम होगा डाउन में, बट जो पिक करने वाला बंदा है उनका अगर नाम 2 टाइम होगा E और E टॉप में, तो ये लंच बॉक्स पिक किया जाएगा देवनार स्टेशन से. कैन इमेजिन ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर डी टॉप में, बॉटम में और लेफ्ट साइड में तीनों जगह अगर डी होगा तो ये लंच बॉक्स किस जगह से पिक किया जाएगा, राइट? नहीं समझ में आ रहा है? सो बिकॉज ऑफ दैट, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कोडिंग सिस्टम, वी नीड मिनिमम 3 months ट्रेनिंग. 3 महीने लग जाते हैं टोटल कोड सिस्टम में जानने के लिए. ओके,
So here is the journey of code. 19 सिस्टम स्टार्ट हुई थी 1890 में. So 1920 तक कलर थ्रेड, कलर धागा मतलब एक कलर का नॉर्मल धागा यूज किया जाता था टू आइडेंटिफाई द लंच बॉक्सेस. सो एज पर द 7 आइलैंड्स को 7 कलर्स अलॉटेड किए गए थे. सो एक कलर का धागा ही डब्बा को आइडेंटिफाई किया जाता था. सो आफ्टर दैट जिस तरह से कस्टमर बढ़ने लगे, सरफेस बढ़ने लगा, उसके बाद कलर क्लॉथ, क्योंकि डब्बा ढेर सारे आने लगे तो वो धागा तो वो दिख नहीं रहा था, तो उसके जगह चिंदी कलर का नॉर्मली एक क्लॉथ का पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ क्लॉथ वो यूज करने लगे टू आइडेंटिफाई द कस्टमर. एंड आफ्टर 1970 कलर में ऑयल पेंट कलर का यूज करने लगे, बट तभी नंबर्स और अल्फाबेट्स नहीं यूज किए जाते थे, बिकॉज वो टाइम के जो डब्बा वाला थे वो बेसिकली इलिटरेट थे, मतलब उनको ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था. बट अभी के जो डब्बा वाला है 1970 के बाद उसमें इवैल्यूएशन हुआ, नंबर्स और कलर्स उसमें नंबर्स उसमें ऐड होते चले गए. मतलब बेसिकली पहले बोरीवली स्टेशन को आइडेंटिफाई करना होता था तो रेड कलर मतलब बोरीवली स्टेशन था, बट अभी रेड कलर मींस बोरीवली नहीं, बीओ मतलब बोरीवली, मतलब उसमें कुछ चेंजेस आने लगे. मतलब जिस तरह से नंबर्स बढ़ते गए कस्टमर्स के, तो कोड को जनरेट करने में कलर्स तो ज्यादा तो नहीं बना सकते, 12 ही कलर है, राइट. तो इसी की वजह से उसमें ऐड ऑन होते गए. तो इस तरह से कोड की जर्नी, और बेसिकली ये जो कोड होता है वो डब्बा के टॉप में ऐड किया जाता है. तो इस तरह से कोड है, और जी ये है हमारी सप्लाई चेन. सो टोटल वी हैव 12 पार्ट्स. हमारे टोटल सप्लाई चेन के 12 पार्ट्स है. सो सप्लाई चेन मतलब हब एंड स्पोक सिस्टम. बेसिकली मतलब जिस तरह से डब्बा मॉर्निंग में पिक किया जाता है और फाइनली लास्ट मिल डिलीवरी तक डब्बा जाता है, तो उसके बीच में जो प्रोसेस होती है ये हमारी हब एंड स्पोक सिस्टम को फॉलो करती है. You can see here the sorting point means Vileparle station, Churchgate is the last station, so middle arrow is a local train basically we can say. So ABCD डब्बा वालास, ये कुछ डब्बा वालास है, ये घरों से डब्बा पिक करते हैं, collection from the home, so they come together on Vileparle station. So Vileparle station पर आने के बाद as per the center code, as per the destination code, we again sort out the lunch boxes. मतलब बीच में अगर 3 नंबर लिखा होगा, 3 नंबर होगा, तो 3 नंबर के लंच बॉक्स एक साइड में रख दिए जाएंगे, 2 नंबर के एक साइड में रख दिए जाएंगे. मतलब एज पर द सेंटर कोड दे शॉर्ट आउट द लंच बॉक्सेस ऑन द सॉर्टिंग पॉइंट. आफ्टर दैट ये लंच बॉक्स सेंड किए जाते हैं डाउनटाउन में, मतलब डेस्टिनेशन स्टेशन को. जिस तरह से चर्चगेट में सभी के सभी लंच बॉक्स आते हैं, तो चर्चगेट में अगर इसे शॉर्ट आउट किया जाता है एज पर द डब्बा वाला कोड. मतलब 1 से लेके 10 डब्बा वाला वहां पर हो गए. शुरू में डब्बा वाला को अल्फाबेट दिया गया है, ई नाम, अगर ए रितेश है तो आर होगा, ईश्वर है तो ई होगा. बट डाउनटाउन में जब शॉर्टिंग होती है तो डब्बा वाला का नंबर दिए गए हैं, 1 डब्बा वाला, 2 डब्बा वाला, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर. सो एज पर द डब्बा वाला कोड डाउनटाउन में से शॉर्ट आउट किया जाता है और फाइनली वो डब्बा लास्ट डिलीवर किए जाते हैं. सो सी हियर फ्रॉम होम टू द शॉर्टिंग पॉइंट, फ्रॉम होम टू द शॉर्टिंग पॉइंट we need 1 डब्बा वाला. Then from sorting point to Churchgate station, 2nd डब्बा वाला, and finally from Churchgate station to the last office delivery, 3rd डब्बा वाला. So this is the first part of our supply chain. Total we have 12 parts. So जो first part है, total we need 3 डब्बा वालास to deliver the lunch boxes in a first part. 3 लोगों की जरूरत लग जाती है फर्स्ट पार्ट में. ऐसे हमारे कुछ ऐसे पार्ट्स है जहां पर 7 से लेके 8 डब्बा वालास की जरूरत लगती है एक डब्बा डिलीवर करने में. सो इसे डिपेंड ऑन द लोकल रूट्स. अगर डोंबिवली का लंच बॉक्स विरार सेंड करना होगा, सो ये 3 रूट को फॉलो करके जाना होता है, तो वहां पर 7 से लेके 8 डब्बा वालों की जरूरत लग जाती है. जिस तरह से कोडिंग सिस्टम को अगर जानना होगा तो मिनिमम वी नीड 3 मंथ्स ट्रेनिंग. सेम एज दैट अगर सप्लाई चेन के बारे में अगर हमें जानना होगा तो मिनिमम 1 ईयर की ट्रेनिंग लग जाती है सप्लाई चेन के बारे में जानने के लिए. सो इफ यू हैव 100% नॉलेज अबाउट द सप्लाई चेन and coding system, then you will become the president of डब्बा वाला. So जिसको 100% नॉलेज आता है वही डब्बा वाला का प्रेसिडेंट बन सकते हैं. So अभी भी कुछ डब्बा वाला मतलब 92% डब्बा वाला ऐसे हैं जिनको अभी तक 100% नॉलेज सप्लाई चेन के बारे में नहीं है. मतलब एक पर्टिकुलर स्टेशन और पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के बारे में ही उनको पता दिया जाता है. So our working time is 9 to 6. In the morning we start by 9 o'clock and we end by the 6. So the cost of the service, pricing policy. So how much we are charging from our customer? It's a question for you. How much we are charging from our customer? So I'd like to give one hint to all of you. If you want to send your
30 ग्राम एनवलप, नॉर्मल वन एक 30 ग्राम का एनवलप अगर आपको सेंड करना है थ्रू दी कुरियर कंपनी, सो ये कुरियर आपका दूसरे ही दिन जाके डिलीवर हो जाएगा और डे आफ्टर टुमारो इट विल बी डिलीवर्ड। सो 2 दिन में इससे डिलीवर किया जाएगा। सो फॉर 30 ग्राम के एनवलप के लिए वो 50 रुपीज चार्ज करते हैं, 60 रुपीज चार्ज करते हैं। इफ यू वांट टू डिलीवर योर पार्सल एट द सेम डे, देन दे चार्ज एक्स्ट्रा अमाउंट, इट्स मोर देन 130 रुपीज, 140 रुपीज। सो 30 ग्राम के लिए सेम डे डिलीवरी अगर हमें चाहिए, सो वी आर पेइंग मोर देन 150, 140, 130, right? Then how much Dabbawalas they are charging? Because Dabbawalas they are carrying your 1 kg lunch box. The weight of the lunch box is more than 1 kg. So 1 kg lunch box वो carry करते हैं. At the same day they are giving 2 transaction to you from your home to your office, office to home. So एक ही दिन में 2 transaction आपको दिए जाते हैं. Then how much Dabbawalas are charging? For 30 gram envelope they are charging 140 rupees. So 1 kg lunch box Dabbawalas they are carrying but giving 2 transaction a day. So how much Dabbawalas are charging from their customer? Please answer the question. 5,000 per month, okay? Back side. No one? ठीक है, जैसे सर ने कहा कि 5,000 per month डब्बावाला चार्ज करते होगे. If you are running the same business, आप ही डब्बावाला हो, then how much you will charge? आप कितना चार्ज करोगे? चार्ज ही नहीं करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट. हाउ मच यू विल चार्ज? कितनी अमाउंट हो सकती है? मिनिमम कितनी अमाउंट हो सकती है? 1,000, 2,000, 5,000, 6,000, 3,000 a month. Okay, let's see. Yeah, just here. इन द स्टार्टिंग मैंने आपसे कहा था कि डब्बावाला अपने कस्टमर को गॉड मानते हैं, राइट? सो कस्टमर इज अ गॉड फॉर देम. क्या मैं कहता हूँ? सो कस्टमर इज अ गॉड फॉर देम. सो कस्टमर बेस, आवर कस्टमर बेस इज नॉट द सेम. स्मॉल चिल्ड्रन आल्सो आवर कस्टमर, बिग सीईओ एंड बिग मैनेजर्स आल्सो आवर कस्टमर. सो मैनेजर एंड सीईओ दे कैन पे मोर देन 5,000 रुपीज, बट द स्मॉल चिल्ड्रंस, वॉचमैन, कार ड्राइवर्स दे कैन नॉट पे, राइट? Then how much we have to charge? So स्पेशली जब डब्बावाला ने इसके बारे में डिसीजन लिया कि कितनी चार्ज हमें हमारे कस्टमर से लेनी है. सो एक कस्टमर से ज्यादा चार्ज करो और छोटे कस्टमर से कम चार्ज करो. सो देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द गॉड, बिकॉज गॉड तो एक ही है, कस्टमर तो एक ही है, सभी से हमें एक ही प्राइस चार्ज करनी है, आइडियल प्राइस ही हमें सबसे चार्ज करनी है. देन हाउ मच वी हैव टू चार्ज? सो छोटे कस्टमर और बड़े कस्टमर को ध्यान में रखते हुए डब्बावाला ने उनकी प्राइसिंग पॉलिसी इतनी जबरदस्त डिसाइड की कि ये प्राइसिंग पॉलिसी की वजह से आज तक डब्बावाला को कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं आ पाए. आजू बाजू में कोई भी कॉम्पिटिटर आज तक डब्बावाला को बीट नहीं कर पाए. व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर प्राइसिंग पॉलिसी. डब्बावाला उतने कस्टमर से इतने कम चार्ज करते हैं कि एक ट्रांजैक्शन के लिए ओनली 15 रुपीज, 15, ओनली 15 रुपीज दे आर चार्जिंग फॉर देयर वन ट्रांजैक्शन. सो इन अ डे दे आर चार्जिंग 30 रुपीज. So for 10 days it would be 300 and for a month 900 rupees. So minimum we are charging 700 rupees and maximum 1400 rupees because कुछ customers सेम नहीं होते. जैसे हमारे 5 उंगलियां हैं, आमची 5 बोटे आहेत, बरोबर? So जिस तरह से ये सेम नहीं है उसी तरह से हमारे कस्टमर भी सेम नहीं होते. तो कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो एक ही लंच बॉक्स में 2-2 लंच बॉक्स भेज देते हैं. कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि उनका वेट, मतलब आइडियली 1 kg वेट होता है एक लंच बॉक्स का, बट उनका वेट होता है 5 kg से ज्यादा. अगर किसी ग्रुप के किसी मेंबर ने इसे डिनाइड कर दिया तो ये डिसीजंस इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता. सो बिकॉज ऑफ दैट आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन बिल्ड करके ही आपको जाना है. सो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन में, अगर आप फर्स्ट टाइम ही अगर आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो तो आपको अगेन मौका नहीं दिया जा सकता. सो 20 मिनट्स यू हैव, 20 मिनट्स में आपको डिसीजन फाइनल करने को मौका दिया जाता है. आफ्टर दैट 1:30 to 2:30 इट्स अ री-पिकअप. एम्प्टी लंच बॉक्स को पिक किया जाता है ऑफिसेस से. देन 2:30 to 4 o'clock इट्स अ रिवर्स जर्नी बाय लोकल ट्रेन, वी कैन से फ्रॉम चर्चगेट टू बैक विलेपार्ले स्टेशन. देन 4 to 4:30 इज अ रेस्ट टाइम फॉर देम. वी रिजर्व इट दिस टाइम. And then finally 4:30 to 6 o'clock. 6 o'clock is like a barrier here. So before 6 o'clock you should deliver your all the lunch boxes because 6 बजे के बाद किसी के घर जाना it's not a good task.
It's not a good habit. So because of that, you have to complete your work before 6 o'clock. So morning 9 से लेके 6 बजे तक ये डब्बावालास की स्पेशली प्लानिंग होती है. So this is the major features of our supply chain. See, 0% fuel, use of the local train for the long distance. Basically, public transport you are using, 0% plastic, 0% fuel, 0% modern technology, 0% investment, and 100% customer satisfaction, because our error rate, that is 99.99997%. It means 6 लाख ट्रांजैक्शन होने के बाद, 60 लाख ट्रांजैक्शन होने के बाद एक गलती डब्बावालास में मानी जाती है. So better than Six Sigma. So you all know 1 to 3 defects in 1 million transaction, that is a Six Sigma, right? So but डब्बावालास का जो डिफेक्ट लेवल है, that is 1 defect in 6 million transaction, means 60 लाख ट्रांजैक्शन होने के बाद एक गलती हो जा सकती है, ऐसे माना जाता है अकॉर्डिंग टू द Six Sigma. So no strike record. Can imagine, आज तक किसी भी डब्बावालास ने किसी भी टाइप की स्ट्राइक नहीं की है कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए. तो उनका कहना है कि एरर इज अ हॉरर, वी आर गोइंग टू डिलीवर द लंच बॉक्स टू द गॉड. अगर हम टाइम पर डब्बा, अगर हमारे कस्टमर को डिलीवर नहीं करते हैं, देन गॉड विल एंग्री ऑन मी. कस्टमर नाराज हो सकते हैं, और कस्टमर को भूखे सोने देना मतलब ये पाप करने जैसा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. सो फर्स्ट कंप्लीट योर टास्क, फर्स्ट कंप्लीट योर डिलीवरीज, एंड आफ्टर दैट यू कैन डू योर वर्क. आपको जो करना आप कर सकते हो. No resignation in last 128 years. Can you imagine? There is no any managers, no CEO, no directors to give instruction, to give targets to you. So no target, that means no frustration, no tension. So no frustration, no tension, because of that there is no resignation. So last, no age limit for the work. You can start your work by 18 years old. यहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जब तक काम कर सकते हो तब तक आप कर सकते हो. सो स्टिल 85 years old डब्बावालास इज वर्किंग विद अस. सो 85 years old का जो डब्बावालास है, स्टिल ही इज यूजिंग हिज बाइसिकल. 85 years old का बंदा अगर साइकिल चला सकता है, कैन इमेजिन, तो डब्बावालास की हेल्थ किस तरह से होगी. क्योंकि डेली डब्बावालास दे आर ट्रैवलिंग मोर देन 6 किलोमीटर ऑन बाइसिकल्स. सो बिकॉज ऑफ दैट उनकी हेल्थ अच्छी मानी जाती है बाइसिकल की वजह से. सो मैंने प्रेसिडेंट से एक सवाल किया था कि डब्बावालास के सिक्योरिटी के बारे में आपने क्या सोचा है. तो उन्होंने कहा कि मतलब अभी तो सभी के सभी डब्बावालास सिक्योर्ड है. सो बिफोर कोविड, बिफोर 2015 डब्बावालास की कोई भी पॉलिसी नहीं थी सिक्योरिटी की. पर उन्होंने आंसर इससे किया था कि सर हमने 2011 से लेकर 2015 तक डब्बावालास का इंश्योरेंस था, मेडिक्लेम था, बट हमारा प्रीमियम इतना जाता था कि उसका यूज ही नहीं कोई डब्बावालास करते थे. बीमार पड़ने के चांसेस कम थे, एक्सीडेंट होने के चांसेस 0 है. तो ये सब होने के कारण वो सब प्रीमियम ऐसे ही चला जाता था. बट मैंने उनसे कहा कि ऐसे नहीं होता, ये कभी भी इमरजेंसी में कुछ भी यूज हो सकता है. तो इसी की वजह से आज सभी के सभी डब्बावालास टोटली सिक्योर्ड है. देन नो रिसोर्सेस, ओनली हेल्प, ओनली बाइसिकल्स. कैन इमेजिन, कितने इंडिया में कितने लोगों के पास सिक्स सिग्मा अवार्ड है, कितने कंपनीज के पास. कुछ गिने चुने कंपनीज है जिनके पास सिक्स सिग्मा अवार्ड है, सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड है. सो सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन हासिल करने में नॉर्मली आईएसओ सर्टिफिकेट भी हमें हासिल करना होगा. तो हमें क्या क्या करना पड़ता है, राइट? क्या क्या नहीं करते हम आईएसओ सर्टिफिकेट के लिए. और आईएसओ सर्टिफिकेट हमारे पास आता है तो हम कस्टमर्स को बताते हैं, पब्लिक में एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि वी हैव आईएसओ सर्टिफिकेट, वी हैव सिक्स सिग्मा, सो आवर कंपनी इज वेल गुड, राइट? हमारी कंपनी की अगर हमें क्वालिटी शो करनी है तो हम लोग सर्टिफिकेट के थ्रू ही शो करते हैं, राइट? बट डब्बावालास में ऐसे ही होता. डब्बावालास को सर्टिफिकेट नहीं दिखाने पड़ते उनके कस्टमर को कि उनकी क्वालिटी किस तरह से है, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट. कस्टमर का ट्रस्ट जिस तरह से डब्बावालास पे है, वही ट्रस्ट उनकी क्वालिटी बिल्ड करता है. सो सी हाउ वी रिक्रूट द पीपल. आप कैसे रिक्रूटमेंट करते हो? फर्स्ट यू टेक इंटरव्यू, आफ्टर दैट ग्रुप डिस्कशन, फाइनली ट्रेनिंग एंड देन हायरिंग, राइट? ये प्रोसेस होती है नॉर्मली कॉर्पोरेट्स में. बट डब्बावालास के केस में ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यूज नहीं लिया जाता. उनका कहना है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सिलेक्ट द पीपल. मतलब ट्रेनिंग देते समय ही सिलेक्शन प्रोसेस, बेसिकली सिलेक्शन मतलब किस पर्सन को सिलेक्ट करना है. जैसे हम सिलेक्ट करते हैं थ्रू द इंटरव्यू, बाद में उनको ट्रेनिंग देते हैं.
थ्रू द इंटरव्यू वी सिलेक्ट द पीपल। तो डब्बा वाला का कहना है कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सिलेक्ट करो और बाद में जो इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है वो बाद में दो। सो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है बेसिकली 5 डेज का सिलेक्शन प्रोसेस है डब्बा वाला का। सो फर्स्ट 2 डेज में डब्बा वाला को नॉलेज दिया जाता है, मतलब न्यू डब्बा वाला को नॉलेज दिया जाता है कि आपको किस तरह से काम करना है, कोड को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, किस स्टेशन पे आपको काम करना है, किस जगह पर जाके डब्बा डिलीवर करना है। सो विद इन 2 डेज वी गिव द नॉलेज अबाउट द कोडिंग सिस्टम एंड बेसिकली सप्लाई चेन टू देम। सो ऑन थर्ड डे उस डब्बा वाला की साइकिल को पंक्चर किया जाता है। उसको पता भी नहीं होता कि मेरी साइकिल पंक्चर होने जाने वाली है। साइकिल को पंक्चर किया जाता है बिकॉज वी वांट टू चेक हाउ वी कलेक्ट द 40 लंच बॉक्सेस with the flat tire within 1.5 hour। ये किसको इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा देता है, साइकिल को या फिर कस्टमर को? हाउ यू मैनेज द सिचुएशन, क्योंकि साइकिल कभी भी पंक्चर हो सकती है। सो विदाउट उसको बताए हुए, जिस तरह से हम किसी भी कंपनी में अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर हैंडल करना होगा या फिर कोई भी चीज अगर कोई भी टास्क उसको देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, तो हम फर्स्ट उसको ट्रेनिंग देते हैं कि आपको ये टाइप के ये काम करने हैं। बट डब्बा वाला को अगर पहले ही बता जाएगा कि आपको पंक्चर होने के बाद ये करना है, तो खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले उनका दिमाग क्या काम करता है ये हम लोग चेक करते हैं कि विद द फ्लैट टायर हाउ वी कलेक्ट 40 लंच बॉक्सेस विद इन 1 आवर, किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डब्बा वाला देते हैं। तो वी चेक दिस क्वालिटी फ्रॉम द डब्बा वाला। सो जैसे ये हो जाता है तो ऑन द 4th डे हमारे कस्टमर को कहा जाता है कि डब्बा वाला के साथ झगड़ा करो, बिकॉज न्यू डब्बा वाला जो आते हैं उनको पता नहीं होता कि आगे क्या सिचुएशन आने वाली है। झगड़ा करने के बाद वो डब्बा वाला किस तरह से वो सिचुएशन हैंडल करता है, किस तरह से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये जो हम कहते हैं वो किस तरह से हैंडल करता है, कस्टमर्स को किस तरह से आंसर करते हैं, ये जाना जाता है ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग सेशन। तो अगर वो बंदा वहां से अच्छे से पास हो जाता है तो 5th डे उस बंदे को कहा जाता है कि यू हैव टू कलेक्ट 60 लंच बॉक्सेस इंस्टेड ऑफ 40 लंच बॉक्स आपको डेली कलेक्ट करते हो तो आपको 60 लंच बॉक्सेस आज करना है। सो वर्कलोड दिया जाता है, वर्कलोड को किस तरह से हैंडल करना है वो चेक करते हैं। इफ इज स्माइल कि चलो ठीक है आया है वर्कलोड मैं कर सकता हूं, देन इसको डब्बा वाला को एज अ डब्बा वाला उसको माना जाता है। सोचिए व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब, पहले 2 दिन तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कोडिंग सिस्टम सप्लाई चेन क्या होती है। तीसरे दिन मेरा टायर पंक्चर हो जाता है, इतना सारा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। चौथे ही दिन कस्टमर झगड़ा करते हैं, 5वें दिन ज्यादा वर्कलोड आता है। तो इतने सारे सिचुएशन में वो डब्बा वाला खुद को कैसे फील करता है, वी चेक दिस क्वालिटी। अगर वो अच्छा खासा काम करता है तो उनके बाद ही उनको डब्बास के सिस्टम में ऐड किया जाता है। अगर ये फेल हो जाते हैं तो उनको अगेन दूसरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। सो रिजेक्शन मतलब रिजेक्शन रेट है, अगर 100 डब्बा वाला अगर न्यू आते हैं तो उनमें से 10 डब्बा वाला को रिजेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। और ये जो टाइम मैनेजमेंट है, कस्टमर इज अ गॉड। हियर इज अगेन एग्जांपल। आप सभी को पता है कि डब्बा वाला को प्रिंस चार्ज मिलने आए थे मुंबई में, राइट? सो वो क्यों मिलने आए थे? जिस तरह से डब्बा वाला ने उनके जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज थे, उनके ऑफिसर्स को डब्बा वाला ने सर्विस दी थी, तो उन्होंने भी उनके कुछ रिकॉर्ड्स में जिक्र किया था। उन्होंने कुछ तो लिखा था कि डब्बा वाला के वजह से आज हमने वो टाइम अच्छी सर्विस दी थी। तो वो प्रिंस चार्ज ने वो कहीं तो पढ़ी थी और डब्बा वाला को 1998 में डब्बा वाला को 6 सिग्मा स्टैंडर्ड से नवाजा गया था। तो ये दोनों चीज को देखते हुए प्रिंस चार्ज ने सोचा कि मुझे डब्बा वाला से मिलना है। So I want to meet with them. So Mr. Jain was the coordinator from India to finalize the meeting with the Dabbawala. So he came down in Mumbai in 2003. He said to Dabbawala, "Sir, Prince Charge want to meet you. You have to come in this office on the time." So Dabbawala said, "Who is the Prince Charge? We don't know." Prince और Charge एक ही व्यक्ति है या दो है हमें पता नहीं. So Mr. Jain said, "He is a great king of London." But our Dabbawala said, "So what? Our customer is a greater king. If you are a king who want to meet us, then he has to come in our given time, in our given place." अगर हम उनको हमें अगर मिलना है तो हमारे दिए हुए टाइम पर आना ही होगा, बिकॉज हमारे कस्टमर को सर्विस देना हमारा काम है. So Prince Charge thought about it कि thousands of people they are waiting for my appointment, but I am giving appointment to Dabbawalas, but they are not accepting. Why? Because of their customer, because of their God. Okay, I want to meet them. Please finalize the meeting with them. उन्होंने ये सोचा और मीटिंग फाइनलाइज हो गई.
4th ऑफ नवंबर 2004 में मीटिंग कहाँ हुई? तो चर्चगेट के फुटपाथ पर। उनको टाइम दिया गया, अगर आपको मिलना है तो 11:30 से लेके 11:40 के बीच में, 11:30 से लेके 11:40 के बीच में ये 10 मिनट्स हम आपको दे सकते हैं, बिकॉज 11:30 से लेके 12 o'clock इट्स अ शॉर्टिंग टाइम। सो शॉर्टिंग टाइम में हम लोग टाइम मैनेज कर सकते हैं, बट अगर आप 11:40 के बाद आते हैं तो हम आपको मिल नहीं पाएंगे। सो आपको आना है तो 10 मिनट्स के भीतर ही आपको आना है। सो मीटिंग वॉज फाइनलाइज विद देम। सो यू कैन सी इस तरह से डबोलस की मीटिंग प्रिंस चार्ल्स के साथ फाइनलाइज की गई थी। तो ही इज आवर एक्सप्रेशन। तो जिस तरह से हम महाराष्ट्र है, तो कोई भी अगर गेस्ट आते हैं तो उनका जिस तरह से सम्मान करना चाहिए, तो उस तरह से उनकी सम्मान यहां पर किया गया था। एंड प्रिंस चार्ल्स के सेकेंड मैरिज के लिए ओनली 3 people वॉज इन्वाइटेड फ्रॉम इंडिया। सो 2 was फ्रॉम डब्बावालास एंड 1 was फ्रॉम राजस्थान, क्वीन ऑफ राजस्थान रानी पद्मिनी देवी। सो इतना अच्छा सम्मान डब्बावालास को मिला था। देन वर्ल्ड अमेजिंग रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, क्वालिटी एश्योरेंस, देन आइकॉनिक अचीवर ऑफ 2018, ऐसे टोटल मोर देन 700 सर्टिफिकेट्स आज डब्बावालास को मिले हैं। सो थिंक अबाउट इट, डब्बावालास ने कभी भी सर्टिफिकेट्स के लिए काम नहीं किया। जिस तरह से हम हमारी कंपनीज की क्वालिटी शो करने के लिए सर्टिफिकेट्स को चाहते हैं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप कस्टमर सर्विस के लिए, आफ्टर सेल सर्विस और ड्यूरिंग द सर्विस, अगर आप उसके लिए अगर 100% डेडिकेशन देते हो तो सर्टिफिकेट्स अपने आप आपके पीछे चलते आ जाएंगे। देन देयर इज अ होटल इन लंदन। उस होटल के इनॉग्रेशन के लिए सम डब्बावालास को इनवाइट किया गया था। The concept of the hotel is very unique. If you order the food from this hotel, then food will comes to you by dabba, not by the plate. So because of that, they invite some dabbawalas, and these are the 50 people who influence the Mumbai in all over the world. जिन्होंने डब्बावालास का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस किया, उनमें से डब्बावालास को टॉप में माना जाता है। Then in 2010, our Maharashtra government they gave chance to Dabbawalas to represent our Maharashtrian culture in front of Delhi on Rajpath. तो राजपथ पर जिस तरह से 26 जनवरी को परेड होती है, तो परेड में डब्बावाला ने इस तरह से प्रेजेंटेशन किया था। देन बीबीसी, आज तक, CNBC, देन नेशनल जियोग्राफी, ऐसे ढेर सारे केस स्टडी करने वाले चैनल्स है। देन उन्होंने भी डब्बावाला को फेलिसिट किया। सो व्हेन आई डिड माय MBA, आई कंप्लीटेड MBA फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी इन 2016-18। सो लास्ट ईयर के एग्जाम में, लास्ट ईयर में था MBA के, केस स्टडी करनी थी मैनेजमेंट के ऊपर, तो मैंने सोचा कि डब्बावाला के ऊपर ही क्यों ना करें। तो डब्बावाला के बारे में जब भी मैंने सोचा, तो मैंने सोचा कि कस्टमर का क्या रिएक्शन है डब्बावाला के बारे में। सो मैंने सोचा ठीक है, चलो डब्बावाला को, सॉरी, कस्टमर को कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन करने ही चाहिए। सो मैंने कस्टमर को क्वेश्चन किया, सर व्हाई यू आर यूजिंग दिस सर्विस, बिकॉज लंच बॉक्स इज योर, ईटिंग पर्सन आल्सो यू, देन व्हाई यू आर यूजिंग द डब्बावाला सर्विस। ही सेड डब्बावाला आर वेरी एक्सीलेंट फॉर मी। I said, why Dabbawalas is excellent for you? He said, when I forget my watch, my purse, my bag, my important document at my home, my wife send it to me by Dabbawalas. This is a value-added service for me. It's a free of cost. कई लोगों की ऐसी बीमारी होती है कि कुछ ना कुछ तो घर पे भूल जाते हैं। सी, ये अभी की बात है, बट बिफोर 1980, जब इंडिया में टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, ना ईमेल्स थे, ना मोबाइल फोन्स थे, तो 1980 के पहले ये सर्विस ज्यादातर डब्बावाला को मतलब लोग प्रीफर करते थे फॉर द सेंडिंग द मैसेजेस। सो सेम क्वेश्चन आई आस्क्ड टू अनदर कस्टमर, सर व्हाई यू आर यूजिंग दिस? सो ही सेड डब्बावाला इज अ गॉड फॉर मी। आई सेड व्हाई डब्बावाला इज अ गॉड फॉर यू? बिकॉज डब्बावाला थिंक कि कस्टमर इज अ गॉड एंड यू आर थिंकिंग कि डब्बावाला इज अ गॉड फॉर मी। सो उन्होंने आंसर किया कि 10 साल पहले जिस तरह से सैलरी मुझे कैश में मिलती थी, तो मैं क्या करता था कि उसको ट्रेन में लेके जाना, इट्स वेरी डेंजरस, चोरी होने के चांसेस ज्यादा थे। तो मैं क्या करता था, मेरा ही लंच बॉक्स खाना होने के बाद उसमें सैलरी उसमें इंसर्ट करके मैं अपने वाइफ को सेंड करता था, और जितनी भी अमाउंट थी वो मेरे वाइफ को सेफली पहुंच जाती थी। सो मैंने कहा इसमें क्या डिफरेंट है? तो उन्होंने कहा कि डब्बावाला कभी भी अपना लंच बॉक्स, कस्टमर का लंच बॉक्स ओपन नहीं करते। आपने देखा होगा कि लास्ट 2 इयर्स में जिस तरह से फूड डिलीवरी कंपनीज आज मुंबई में या फिर पूरे इंडिया में काम कर रही है, तो उन्होंने आपको कुछ ना कुछ तो वीडियोस भी देखे होंगे कि कस्टमर, जो एम्प्लॉयज है, कस्टमर का जो पार्सल है उसको खोल के उसमें से खाना खा के उसे अगेन पैक करके कस्टमर को डिलीवर करते हैं। बट ऐसे आपने कभी डब्बावाला के बारे में सोचा कि 130 सालों में
किसी कस्टमर ने ऐसे कुछ वीडियोस या कुछ ऐसे कुछ आपने सुना है कि डब्बा वाला ने कस्टमर का मिस यूज किया, उसके लंच बॉक्स का मिस यूज किया? सो दिस इज अ ट्रस्ट कि मेरी सैलरी डायरेक्ट डब्बा में इंसर्ट करके डब्बा उसको हैंड ओवर करना, इट्स अ ट्रस्ट कस्टमर का हमारे डब्बा के ऊपर का ट्रस्ट। बिकॉज डब्बा वाला जिस तरह से कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, उनके साथ नॉर्मली सर्विस देने के लिए नहीं करना है, तो उनमें मन में उनके दिल में जाके उनके साथ जुड़ना है। बिकॉज डब्बा वाले के कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो पहले स्कूल में थे, स्कूल में उन्होंने सर्विस ली थी, उनके पापा ने सर्विस ली थी, बाद में उन्होंने स्कूल्स में रह के सर्विस ली, आज वो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, तभी भी वो डब्बा घर से ऑर्डर करते हैं थ्रू द डब्बा वाला। सो सालों से डब्बा वाला के कस्टमर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो दिस इज द सर्विस। तो ये है कस्टमर का सोचने का तरीका डब्बा वाला के रिलेटेड, और डब्बा वाला का सोचने का तरीका कस्टमर के रिलेटेड। सो अगर कस्टमर जुड़ते हैं तो उनको लास्ट तक कैसे जुड़ाए रखना है। अगर हमारी भी पीढ़ी, हमारी भी सर्विस चेंज होती है, हमारे भी न्यू डब्बा वाला आते हैं, तो उनको भी ये कैसे मेंटेन रखना चाहिए, ये नॉलेज डब्बा वाला उनके एम्प्लॉयज को देते रहते हैं। देन सर रिचर्ड ब्रांसन, दिस इज द सेकंड रॉयल विजिट टू डब्बा वाला। सो डब्बा वाला जिस तरह से फेमस हो रहे थे, तो कुछ लोगों का कहना था कि वी वांट टू चेक हाउ द डब्बा वाला एक्चुअली वर्किंग ऑन द ग्राउंड लेवल, कि किस तरह से ट्रैवलिंग होती है, अनलोडिंग लोडिंग होती है, किस तरह से आइडेंटिफिकेशन किए जाते हैं। सो वी कम अप विद द न्यू कंसेप्ट दैट इज अ डे विद डब्बा वाला। इफ यू वांट टू travel along with the डब्बा वाला for one day, you can travel through this concept. So Mr. Richard Branson, he is the president of Virgin Airlines. So space में भेजने के लिए उन्होंने आपको पता ही है कि एक स्पेसशिप डेवलप किया है, राइट? सो ही इज अ सेकंड रॉयल विजिट टू डब्बा वाला। तो इन्होंने क्या किया था कि डब्बा वाला के साथ ट्रैवल किया। यू कैन सी ही इज होल्डिंग द न्यू यूनिक लंच बॉक्सेस, राइट? उन्होंने एक लंच बॉक्स डिजाइन किया था अपने एम्प्लॉयज के लिए। मुंबई में जिस तरह से उन्होंने डब्बा वाला के साथ ट्रैवलिंग करने के बाद ये लंच बॉक्स उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को डिलीवर किया। तो सोचिए, अगर आप रिलायंस कंपनी में जॉब करते हो तो मुकेश अंबानी जी ने आके आपको लंच बॉक्स, आपका लंच बॉक्स आपको हैंड ओवर किया, सो क्या एक्सपीरियंस होगा वो, जिनको मिल भी नहीं सकता, उन्होंने अगर मेरा लंच बॉक्स मेरे सामने रख दिया तो मेरे लिए कितनी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। तो ये एक्सपीरियंस उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को मुंबई में दिया था। सो डच क्वीन ऑफ नेदरलैंड, शी वाज आल्सो मीट अस इन 2018। उनका भी इंडिया टूर था, तो इंडिया में टूर के आने के बाद उन्होंने सोचा कि डब्बा वाला से मिलना है, सो शी वाज आल्सो मीट अप। Then we have more than 2 lakh customers. So because of that, some FMCG companies, they tie up with the Dabba Walas to advertise their products. So Pizza Hut, they completed their 9,000 stores in all over India. So because of that, they used the Dabba Walas network to advertise their stores in Mumbai. So उन्होंने डब्बा एक बॉक्स डिजाइन किया था, उस बॉक्स में एक कूपन ऐड किया था। So if you show this coupon to the nearest Pizza Hut store, then you will get the pizza. आपको पिज्जा मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये पिज्जा डब्बा वाला ने डिलीवर किया था। सो इस तरह से गूगल, फेसबुक, ऐसे कुछ कंपनीज है जो बिग कंपनीज है, रिलायंस है, कोटक महिंद्राज है, ऐसे अलग अलग कंपनीज डब्बा वाला के साथ 10-10, 15-15 दिनों में ये एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटी होती है। देन T20 वर्ल्ड कप के इनॉग्रेशन के लिए पूरे वर्ल्ड ने डब्बा वाला का नाम सजेस्ट किया था ये ट्रॉफी के इनॉग्रेशन के लिए। सो जिस तरह से डब्बा वाला अपने कस्टमर के लिए काम करते हैं, सर्विंग पीपल इज टू सर्विंग गॉड। So serving people means who exactly? Not only our customer. So other communities, other people, these also are the people. These are also the God. तो उनके लिए हम क्या करें? जिस तरह से केरला में फ्लड आया था, तो केरला के फ्लड में जो लोग विक्टिम्स थे उनके लिए हम क्या करें? So हर एक डब्बा वाले में 20 रुपीज, only 20 रुपीज they contributed. So 20 into 5,000 it would be 1 lakh rupees. So 1 lakh rupees डोनेट किया गया था CM केयर फंड में वो टाइम डब्बा वाले के थ्रू। So same as that, हमारी एक रोटी बैंक है। रोटी बैंक, दिस इज अ CSR पार्ट टोटली। रोटी बैंक मीन्स फूड बैंक। इसका क्या मतलब, ये कंसेप्ट का एक यूज है, लाइक इफ यू हैव लेफ्ट ओवर फूड, आपकी शादी में या फिर मैरिज में जो लेफ्ट ओवर फूड बच जाता है, तो उससे फेंक देने से अच्छा है यू कॉल टू डब्बा वाला विल कम देयर, दे विल कलेक्ट ऑल द लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम योर प्लेस एंड दे विल डोनेट इट टू द पीपल हु एक्चुअली नीड इट। तो उनको ये कंसेप्ट के थ्रू फूड दिए जाते हैं। देन लंच विद द हंग्री चिल्ड्रंस वंस इन अ वीक। एक दिन क्या हुआ था कि कुछ डब्बा वाला, मोस्टली डब्बा वाला रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर ही अपना लंच करते हैं, तो लंच करते समय कुछ बच्चे लोग वहां पर आए थे। तो बच्चों का कहना था कि सर हमें खाना दीजिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें खाना चाहिए।
तो डब्बा वाले ने सोचा ठीक है चलो आप मेरे साथ ही खाना खाने के लिए बैठ जाओ। तो वो डब्बा वाला ने हमारे प्रेसिडेंट से कहा कि उन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं जो प्लेटफॉर्म पर ऐसे घूमते हैं, जिनको लोग पैसे देते हैं बट उनको घर का खाना नसीब नहीं होगा, तो घर का खाना उनको हम कैसे दें। तो थ्रू दिस कंसेप्ट हमने एक मतलब डब्बा वाला उसको एक आइडिया आई कि ठीक है, सो हर एक डब्बा वाला वीकली 2 डब्बा कैरी करेंगे। सो 1 लंच बॉक्स फॉर यू एंड 1 लंच बॉक्स फॉर दिस पीपल, फॉर दिस चिल्ड्रंस। सो वीकली आपको कभी भी जिस टाइम आपका वर्कलोड कम होगा वो टाइम आप 2 डब्बा कैरी करना है, 1 लंच बॉक्स उन बच्चों के लिए, 1 लंच बॉक्स आपके लिए। सो अगर देखा जाए तो 5000 लोगों में से डेली 700 से लेकर 900 डब्बा वाला डेली एक्स्ट्रा टिफिन कैरी करते हैं। तो सोचिए 900 बच्चों को डेली फ्री ऑफ कॉस्ट डब्बा वाले के थ्रू, इस कंसेप्ट के थ्रू खाना दिया जाता है। देन शेयर माई डब्बा, इट्स अ पॉपुलर कंसेप्ट। जिस तरह से हमारे कस्टमर ने कंप्लेंट की थी कि आप सोसाइटी के लिए काम करते हो बट हमारी जो वाइफ है वो हमारे लिए इतना खाना भेज देती है, टूस के भर के, एक तो खाना बच जाता है। कभी कभी ऑफिस में पार्टीज होती है तो डब्बा हम नहीं खा सकते, डब्बा अगर घर पे जाता है तो डांट पड़ती है, कुछ तो करो इसके लिए। सो वी डिजाइन दिस कंसेप्ट ताकि हमारे कस्टमर्स भी खाना डोनेट कर सकते हैं। यू कैन सी हियर। वीडियो आधा ही प्ले हो रहा है, साउंड प्लीज। एक्चुअली ये 25% ही स्क्रीन दिख रही है, एक्चुअली 100% वीडियो शो नहीं हो रहा है। Hello. So basically we provide 2 stickers to our customer. One is a red and second one is a green. So अगर नॉन वेज होगा तो रेड स्टिकर यूज करना होता है, अगर वेज होगा तो ग्रीन स्टिकर। कस्टमर को पहले से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, इफ यू वांट टू डोनेट योर लंच बॉक्स, अगर आपको थोड़ा खाना डोनेट करना है तो सबसे पहले खाने से पहले उसे साइड में करके रखिए, जूठा खाना उसमें ऐड मत कीजिएगा। तो इस तरह से शेयर माई डब्बा, देन बच्चों के साथ खाना खाना एंड रोटी बैग, ये तीनों कंसेप्ट के बारे में अगर सोचा जाए तो डेली जिस तरह से 2 लाख लोगों को पेड सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उसी तरह से 5 to 6,000 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना दिया जाता है डब्बा के सीरियसर एक्टिविटी के थ्रू। In the starting of the presentation, I told you कि collection and distribution of the lunch box is with the care of customer, right? ये care of customer exactly क्या है, you know? जिस तरह से डब्बा वाला सिस्टम में काम करते हैं, उसी तरह से कुछ वुमेन्स भी हमारे साथ काम करती है। यहां पर 3 टाइप की डिलीवरीज की जाती है। एक तो स्कूल्स में डब्बा डिलीवर करना, शॉर्ट डिस्टेंस में मतलब बोरीवली का लंच बॉक्स बोरीवली में डिलीवर करना, विद इन 5 किलोमीटर के अंदर शॉर्ट डिस्टेंस में डिलीवर करना, एंड लॉन्ग डिस्टेंस डिलीवर करना लोकल ट्रेन के साथ। तो ये जो 3 टाइप्स है,
तो जो फर्स्ट टाइप है हमारा, जहां पर स्कूल्स में डिलीवरीज की जाती है, तो स्पेशली जो वुमेन्स है और कुछ डब्बा वालाज वो बच्चों के लिए खाना डिलीवर करने के लिए काम करते हैं। तो उनका कहना ऐसा है कि जो कुछ चिल्ड्रंस है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम चिल्ड्रन का जो ज्यादा टाइम वो रोने में ही चला जाता है, तो उनको खाने का ही पता नहीं होता कि 2 सेकंड और थर्ड क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको खाने की आदत भी नहीं होती। तो हमारे जो कुछ वुमेन्स है वो उनको निवाला देने का काम भी करती है, उनको खाना खाने के लिए हेल्प भी करती है, इस तरह से कस्टमर की केयर करती है। मतलब कस्टमर केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो इसी तरह से ये डब्बा वाला फॉलो करता है। सो ड्यूरिंग द कोविड-19, जिस तरह से कोविड इंडिया में आ चुका था, हमारे इंडिया में लॉकडाउन जो 21 डेज का जो फर्स्ट लॉकडाउन यहां पर लग चुका था, आई थिंक 24th को कुछ तो लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, बट हमारे डब्बा वाला की सर्विस 10 दिन पहले ही स्टॉप कर दी गई थी, बिकॉज हमारे थ्रू कोविड का ज्यादातर फैलाव ना हो जाए, इसी की वजह से ये टेक्निक हमने यूज की थी कि पहले ही सर्विस स्टॉप करो। 31 मार्च तक सर्विस टोटली स्टॉप कर दी गई थी। किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी सबसे बड़ी मतलब आपत्ति आने वाली है, इतना बड़ा पैंडेमिक आने वाला है, किसी को नहीं पता था। तो जो डब्बा वाला की सर्विस है, ये ट्रस्ट के अंदर काम करने की वजह से यहां पर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी न होने के कारण जो डब्बा वाला का जो फंड्स है वो मोस्टली सीएसआर एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता था। सो ड्यूरिंग द पैंडेमिक डब्बा वाला को ही फंड के शॉर्टेज लगने लगे। तो ये जो शॉर्टेज जिस तरह से डब्बा वाला को मतलब आए, तो हमारे ट्रस्ट ने भी, हमारे ट्रस्ट के एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं, हमने खुद अप्रोच किया लोगों को, सीएस मतलब जितने भी कंपनीज है, जितने भी फर्म्स है, उनको कहा कि सीएसआर के थ्रू आपका जो 2% डोनेशन है वो डब्बा वाला के लिए दीजिएगा, ताकि पैंडेमिक में हम डब्बा वाला के लिए ये फंड यूज कर सके। सो इसी तरह से डब्बा वाला के लिए हमने अरेंजमेंट की, और मार्च से लेके मतलब मार्च 2020 से लेके मार्च 2020 तक, मार्च 2020 से लेके मार्च 2022 तक इतना फंड डब्बा वाला को आया कि हर एक महीने में डब्बा वाला को 4 से लेके 5,000 रुपीज का ड्राई राशन किट आज डब्बा वाला को दिया जाता है, ताकि उनका घर चल सके। इस तरह से डब्बा वाला को एसोसिएशन के थ्रू हेल्प की जा रही है। जिस तरह से फर्स्ट लॉकडाउन ओपन होने के बाद अक्टूबर 5 अक्टूबर को डब्बा वाला ने अपनी सर्विस स्टार्ट कर दी। तो जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम ज्यादा था, तो कस्टमर सर्विस ले नहीं रहे थे। सो जिस तरह से 2 लाख लंच बॉक्सेस डेली डिलीवर हुए जा रहे थे, तो फर्स्ट जिस दिन डब्बा वाला ने सर्विस स्टार्ट की, तो वो टाइम ओनली 700 लोगों ने ही सर्विस स्टार्ट की थी, मतलब 700 कस्टमर ने ही सर्विस स्टार्ट की थी। सो 5% कस्टमर का रिस्पॉन्स पॉजिटिव आ रहा था। तो वो टाइम ओनली 200 डब्बा वाला वाज वर्किंग। सो बाकी के बचे हुए 4,800 डब्बा वाला को डाइवर्ट कर दिया गया था। कुछ को चाकन एमआईडीसी में डाइवर्ट किया गया था, कुछ लोग खुद की वेजिटेबल सेलर का जॉब कर रहे थे, कुछ लोग ड्राइवर, जिनको ड्राइविंग स्किल है वो ड्राइवर का जॉब करते, मतलब इस तरह से डब्बा वाला को डाइवर्ट किया गया था। उनका मतलब ट्रस्ट का कहना था कि आप कहीं ना कहीं तो ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको इनकम आ सके, बट आपका जो घर का खर्चा है वो एसोसिएशन का है, तो एसोसिएशन मार्च 2020 तक आपका पूरा खर्चा ले लेगी। तो इस तरह से डब्बा वाला को एडजस्ट किया गया था कोविड-19 में। तो जिस तरह से सेकेंड लॉकडाउन आ गया, सेकेंड लॉकडाउन में डब्बा वाला ने सोचा कि सर्विस स्टॉप नहीं करनी है, तो डब्बा वाला ने अपनी सर्विस स्टॉप नहीं की थी। डब्बा वाला मतलब सेकेंड लॉकडाउन में जो कोविड पेशेंट के नंबर है वो ज्यादा थे, लाखों में नंबर थे, राइट। तो वो टाइम एक मजा आता था डब्बा वाला को कि कस्टमर की संख्या बढ़ती थी जब कोरोना डाउन होता था, कोरोना बढ़ता था तो कस्टमर की संख्या डाउन होती थी, बट कोरोना की संख्या ज्यादा थी, तो लोग थे वो डब्बा वाला का हायर करते थे कि अपने पेशेंट को घर का थ्रू खाना जाता था, तो उसी के थ्रू डब्बा वाला को जॉब भी मिलती थी और डब्बा वाला को मतलब अच्छा मजा भी आता था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था, क्योंकि इतनी बड़ी रिस्क लेके डब्बा वाला काम करते थे वो टाइम। तो इस तरह से कोविड में डब्बा वाला ने खुद को संभाला। देन डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से 130 सालों में सर्विस में चेंजेस आते गए, बट जो ऑब्जेक्टिव था दैट इज ओनली डिलीवरी सर्विसेज, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेंट्रलाइज्ड किचन इन मुंबई स्पेशली। सो वी आर गोइंग टू कुक द फूड फॉर द पीपल। सो नाउ customer they can order the food from the dabba walas, so we can give the customized service to the customers. So through this concept more than 2,000 people they will get the job. जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है
स्टार्टिंग में इलिटरेट डब्बावालास काम करते थे, नाउ सेमी लिटरेट डब्बावालास आर हियर, बट द फोर्थ जनरेशन इज हायर एजुकेटेड. तो उनको सर्विस में किस तरह से लाना है, उनको डाइवर्ट कैसे करना है इस सर्विस के लिए. तो थ्रू दिस कंसेप्ट सेंट्रलाइज किचन, देन डब्बावाला ड्राई फ्रूट्स विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट ईयर. देन डब्बावाला ने कुरियर सर्विस भी स्टार्ट कर चुके हैं. देन वेजिटेबल्स भी डिलीवर किए जाते हैं, जूस भी डिलीवर किए जाते हैं. मतलब नॉट ओनली डब्बास वी आर डिलीवरिंग बट अदर प्रोडक्ट्स आल्सो वी आर डिलीवरिंग नाउ. सो ये जो सेंट्रल किचन का कंसेप्ट है, सो ये मुंबई में स्टार्ट होने के बाद ओनली लंच वी विल प्रोवाइड. विद इन सम मंथ्स वी विल स्टार्ट द डिनर सर्विस आल्सो, क्योंकि मुंबई का अगर फ्यूचर देखा जाए तो हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग नाउ. सो नेक्स्ट कुछ आने वाले सालों में घर में खाना बनना बंद होने जाने वाला है. तो ये उनको होम कुक फूड किस तरह से प्रोवाइड किया जाए, तो ये सेंट्रलाइज किचन का कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस करने वाला है नेक्स्ट मंथ. श्री शरद चंद्र जी पवार, उनके थ्रू ये कंसेप्ट का इनोग्रेशन होने जाने वाला है. तो यहां पर टोटली टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा. सो आई एम टेलिंग यू कि हम डब्बावालास टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते. सी, जो ऑपरेशन का पार्ट है, डिलीवरीज का पार्ट है, वहां पर किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी यूज नहीं की जाती. बट अगर कस्टमर को ज्वाइन करना है, कस्टमर के साथ जुड़ना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, मार्केटिंग करना है, फाइनेंस को संभालना है, तो टेक्नोलॉजी का यूज यहां पर किया जाता है. पहले डब्बावालास की जो सैलरीज थी वो मोस्टली कैश में होती थी, बट नाउ जो कलेक्शन है कस्टमर से वो स्पेशली पेटीएम, देन यूपीआई कोड, ये अभी ऑप्शंस अवेलेबल है, तो यह डब्बावालास का कलेक्शन होता है. मतलब इस तरह से डब्बावालास खुद को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट किया जा रहा है. बट ये जो बिजनेस होगा ये टोटली डिफरेंट होगा. डब्बावाला एंड डब्बावाला सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंडर ये बिजनेस किया जाएगा. तो शुरू के तौर में इसे मुंबई में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बाद में इसे इंडस्ट्रियल एरियाज लाइक भिवंडी, उल्लासनगर, वहां पर इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और फाइनली इसे बाद में पुणे में इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा. और थर्ड टारगेट जो होगा वो बेंगलोर होगा, और लास्ट में दिल्ली को टारगेट किया जाएगा. तो इस तरह से पूरा प्लान रेडी है. तो हमने कहा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन. तो जब तक इसमें एक्यूरेसी नहीं आ जाती तब तक इसे इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा. थोड़ी सी भी अगर गलती, थोड़ी सी भी अगर फॉल्ट हमें मिलता है तो उसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट की जाती है, मैनेजमेंट टीम उसके ऊपर काम करती है. जब तक प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं होते, जब तक 100% टेस्टिंग ट्रायल रन नहीं होता, तब तक ये बिजनेस नहीं हो जाएगा. आज जो हमारा ट्रायल हो रहा है, वो जो फूड बन रहे हैं उसकी टेस्टिंग हो रही है कि फूड जिस कंटेनर में जाएंगे, मोस्टली प्लास्टिक कंटेनर ही वहां पर होंगे, यूज एंड थ्रो मटेरियल ही होगा. सो फूड अगर आपको प्लास्टिक में आते हैं तो वो प्लास्टिक का जो कंटेनर है उसका अफेक्शन आपके बॉडी पे ना हो, तो उसके लिए क्या करना है, वो जो फूड होगा उसमें एसिडिटी कंट्रोलर भी होने चाहिए. मतलब हर एक चीज उसमें होनी चाहिए. हर एक खाना, हर एक जो बनने वाली डिश है उसकी क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, उसकी एक फॉर्मूला बनना चाहिए. फिलहाल उसी के ऊपर वर्क हो रहा है. वो जैसी होते ही ये सिस्टम इंट्रोड्यूस की जाएगी मुंबई में. सो ये है सबसे बड़ा डाइवर्सिफिकेशन 130 सालों में डब्बावालास करने जा रहे हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी एज अ गेस्ट स्पीकर. एंड दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर डब्बावालास ऑल्सो, बिकॉज जब हम पुणे में आएंगे तो हम आपको तकलीफ देंगे ही कि आप हमसे सर्विस लीजिए करके. सो थैंक यू सो मच. Thank you once again, Mr. Andre. It was really nice having you in here today. Thank you everyone for joining us. We'll see you soon in the 4th edition of Mac Talks. Till then, take care and have a good day ahead.